evening. I welcome all of you on today's webinar after a long time on very good subjects on succession planning and HUF. And on this subject, our very respected Honorable Dr. C.A. Girish Ahuja ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Ashwani Jindal ji from Jalandhar, Sunil Damija ji, Avnash Gupta ji, our Chairman of Northern India Regional Council, Rajiv Kohli ji, Hemant Pava ji, Ramdev Kakra ji from Jalandhar, from Calcutta, and Sanjay Sharma ji, Secretary Celtex Bar Association. I also welcome Neha Sanjay Agrawal ji, Voice of CA. And today, this is so many times repeated subject, but every time we hear Guruji, he gives something new. And so this, keeping in this mind, I plan this subject once again from Guruji, and I especially invite CA Neha Sanjay Agrawal ji, क्योंकि पिछले महीने I came to contact her, और मैडम को मैं देख रहा हूँ कि very well she introduce गुरुजी. So मैंने कहा मैडम को सबसे पहले रिक्वेस्ट करूं कि गुरुजी को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन उससे पहले I request our chairman Northern India Regional Council Avnash Gupta ji kindly address our member. Over, Avnash Gupta ji. Thank you, Rajesh ji, our honorable past secretary of NIRC, respected Guruji, Dr. Girish Ahuja ji, other dignitaries who are available on the panelist, CA Sunil Damija ji, Hemant Pava ji, Rajiv Kohli ji, Kakra Saab, Sanjay Sharma ji from Celtex Bar Association, Ashwani Jindal ji from Jalandhar, and young and dynamic chartered accountant Neha Sanjay Agrawal ji. Today Rajesh ji have organized this webinar in the series of webinars organized by him. So it is his personal webinar, what he is organizing without any CPR and without any involvement of any study circle. So अभी गुरुजी वैसे बता देंगे the real objective of this webinar. So Guruji will tell. But yes, what I request in this webinar is that everybody please ask any questions what you have on this subject, which is a subject which is very near to all of us, and many of the clients are asking about this subject after Corona. Even during Corona, the succession planning and other things are in high demand, and this is an unexplored area by all of us. Many of our clients are requiring and needing this support, and please charge fees for this now. And this is going to be a very big line of business in the coming times. So this is very important. Second request that I want to make, we all know that this is an election year, election month have just started, and this Friday and Saturday are the institute election. And we all are chartered accountant. We have to participate in this election process, and we have to elect our regional council representatives as well as central council representatives. So I request all to please come and vote. So voting is not only the right but a duty also. So I request all of us who are present in this webinar to please come forward and come for the voting polling booth, which must have been communicated to you by the institute and other candidates. So please do come and vote in this election process. Average voting in our last election was about 43-44%. We need to increase it to 50-60% or 70% to the best possible. So I request all of you to please do come and vote in this coming seminars, in this coming voting days. So voting booth details must be with you. So with this, thank you very much for giving me this opportunity to interact. I am always available. NIRC is always available to all of you. If you have anything you want us to do, we are always willing to do it, and we all NIRC members and NIRC is available to you 24/7. So thank you, Rajesh ji, for providing us this special opportunity to interact with the members. Over to Rajesh ji. Thank you, Chairman Saab, for a wonderful guidance to us. And now I request our very young and dynamic chartered accountant, Neha Agrawal ji, kindly introduce our Guruji. But before this, I would like to say that नेहा जी के फादर के साथ मैंने काउंसिल में काम किया है 6 साल, और जैसे
संजय जी बड़े कर्मठ है कार्य करने में, ऐसे ही नेहा जी को मैंने देखा है। नेहा जी इज ए वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और बड़ी ऑनेस्ट है अपने काम के लिए। सो विद दिस मैडम, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली इंट्रोड्यूस आवर गुरु जी। ओवर टू नेहा जी। Thank you so much, Rajesh sir. Thank you. I welcome everybody on behalf of Voice of CA as well. Thank you, Rajesh sir, for giving this opportunity कि मैं गुरुजी को इंट्रोड्यूस कर सकूं। गुरुजी सिर्फ मेरे गुरुजी नहीं है, मेरे फादर के गुरुजी नहीं है, सभी के गुरुजी हैं। एंड अभी मेरी ट्रेनिंग हो गई है उनको इंट्रोड्यूस करने की। एंड आई एवरी टाइम आई फील सो हैप्पी जब मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रही होती हूँ कि मेरे को ऐसे लगता है वाओ, सच एन अपॉर्चुनिटी। So here, just 2 lines I would like to say. He has tremendous experience, and backing him, he has that kind of aura backing him, and with him that everybody who he touches is actually enlightened more and more. So we welcome you, sir, on our platform today कि हम लोग और enlighten हो सके on these upcoming topics, succession and HUF, जो कि actually future होगा मेरी जनरेशन के लिए। So over to you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Neha ji. Now, without taking too much time, I straight away request our Guruji to kindly deliberate on the subject with the new thing, sir. Thank you, sir. Thank you. Everyone, first of all, let me thank, नाम मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, लेकिन आगे बढ़ रहा हूं। राजेश अग्रवाल जी, सुनील दमीजा जी, राजीव कोहली जी, हेमंत पावा जी, संजय शर्मा जी, रामदेव काकड़ा जी फ्रॉम कोलकाता, एंड ऑफ कोर्स आवर चेयरमैन। मैंने लास्ट में नाम लिया लेकिन क्योंकि चेयरमैन तो चेयरमैन ही होगा, ही हैड बीन माय स्टूडेंट बट ही इज ए चेयरमैन ऑफ द NIRC, अविनाश गुप्ता जी, एंड कर्ता ऑफ द CA fraternity for us, Aswani Sindal ji, ladies and gentlemen. Well friends, सबने कह दिया पर्पस क्या है। कहते हैं ना, वो काम तो ये तो एक बहाना है, काम तो कोई और करवाना है। ये तो सबने कह दिया है और मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है मैं क्या कर रहा हूँ आजकल। और सुबह से शाम तक जो हम कर रहे हैं सबको खबर है, तो इसीलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये जो टॉपिक लिया आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से चलूंगा, बिकॉज आई हैव टच्ड दिस टॉपिक मेनी टाइम्स। सक्सेशन प्लानिंग। देखिए, व्हाट रियली हैपेंस इज दैट we have corporate houses, we otherwise have our small and medium type of industries. You have children, when they grow up and then the family enlarges, there is always a problem that business, if you are carrying on a business, there may not be a problem in the business because of the brothers or the cousins or something or the other. So how should we plan our business so that there is no dispute among themselves? And thereafter, how should we plan that whatever asset we have earned, how should we pass on those assets to our children or to our family members? And at the same time, some sword is hanging. People are thinking that there may be inheritance tax also. And if there is inheritance tax, what will happen? Because our time, I remember passing out CA in 1970, but there was a topic called estate duty. Estate duty was there up to 1985. दमीजा जी ने भी पढ़ी होगी वो स्टेट ड्यूटी, समझ में हमें कुछ नहीं आता था, पास हो गए थे। और 85 की स्टेट ड्यूटी में अभी भी बताऊं, उसके केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। किसी को समझ में नहीं आता था, आप अपनी प्रॉपर्टी का सारा बेचकर भी नहीं निकाल सकते थे, कई बार तो ये हालत होती थी, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचकर ही करता था, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेकर तब आपको स्टेट ड्यूटी देनी पड़ती थी। और इतना प्रॉब्लम थी तो स्टेट ड्यूटी हटी हमारी कंट्री में, गिफ्ट टैक्स हटा, ऑल्दो हटा नहीं है, इनडायरेक्टली गिफ्ट टैक्स आ गया थ्रू सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, वो तो आया ही है, आप सबको पता है। वेल्थ टैक्स हटा, ऑब्वियसली वेल्थ टैक्स भी हटा है क्योंकि उसमें कोई रेवेन्यू तो आता ही नहीं था। सो वेल्थ टैक्स ऑल्सो वाज टेकन अवे। एंड देन लास्ट वाज क्या हटा आपका कि अब सिर्फ इनकम टैक्स रह गया है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बार बार आ रहा है, हो सकता है
कि इनहेरिटेंस टैक्स आ जाए। अगर इनहेरिटेंस टैक्स आएगा तब तो उम्मीद नहीं थी। जब तक जेटली जी थे मैं सबको एश्योरेंस देता था एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, बिकॉज ही हिमसेल्फ was a very rich man, and he was all the time saying, what is the use of bringing this wealth inheritance tax? Hardly anything will be there, and people have already paid tax on that. Why do you want to have inheritance tax in this country? Although this inheritance tax there in US, inheritance tax there in other countries also, but the limit there where the inheritance tax is applicable is quite high. Here they may not bring out that limit, but if you have to do planning for inheritance tax, then the only way out is to create a private trust and create beneficiary for that. There is the only way out, because inheritance tax can be avoided by two ways: either making a gift to your children before the death, of course, before that inheritance comes into book, or create a trust. That is the only way out if you have to pass on your wealth to your children or to your family members, and also the business. These days, the big corporate houses have created a private trust, thinking that let this trust be governed by the trustees, professional trustees, and the business may run. They may go for dispute. We are not concerned. लेकिन business will at least run. लेकिन मैं अब बता दूं, ट्रस्ट बनाने के लिए भी सब कुछ बदल गया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कोहली साहब, कि ट्रस्ट बनाने के लिए अब इंडिविजुअल ही ट्रस्ट बना सकता है जब टैक्स नहीं लगेगा, एंड दैट टू फॉर हिज रिलेटिव, पहले तो कोई भी आदमी कोई चीज ट्रस्ट में दे देता था, हम उसको टैक्स नहीं लगाते थे। किसको? ट्रस्ट को। The trust was, we are giving a property to a immovable property or any property to a trust, and we were not supposed to. गुप्ता जी आए यहाँ पर, मैंने देखा सीए गुप्ता जी भी यहाँ के, गुप्ता जी वो बाजिन कर गए कि हम बोल ना दें कि हम संजय अग्रवाल को फेवर करते हैं। मैंने नहीं बोला, सर गुप्ता जी ये नोट कर लेना। आइए वापस। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सर, मैं आपको सुनने आया हूँ, सर। ऐसा है वो व्हाट्सएप पे ये कह रहा हूँ कि मैं तो वेलकम कर रहा हूँ आपको, मैंने अभी देखा, आई जस्ट सॉ यू। मैडम अनूप पांडे जी है। हाँ, मैं भी सर नमस्कार कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा था सुबह राजेश जी से, मैं क्या गुरुजी सबको ट्रॉफी दे रहे हैं, मुझे भी ट्रॉफी दिलवा दो, तो मैं भी बहुत सीनियर मेंबर हो चुका हूँ। हमने सीनियर को नहीं दी सर, एसीएस को दी है। आप एफसीए हैं, हमने सीनियर सर हम या इशू ये लेने नहीं आए हैं, हम तो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कुछ सोचो ना जी, हमें 30-32 साल हो गए सर। आप मुझे देखते रहते हैं, आप लेक्चर सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं गुरुजी, जो पैसे कैसे संभालने हैं, लेना है। आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आपको मिला करेगा और लेक्चर शुरू कर दीजिए। लेक्चर शुरू करिए, बहुत मेमेंटोज मिलते हैं सर। मेरे पास मेमेंटोज हैं, आप मेरे घर आइए, 20, 25, 40, 50 जितना ले जाना है ले जाइए, कोई चिंता नहीं। सर मैं एक और चीज कहना चाह रहा था कि ना हमें एक स्पिरिचुअल सक्सेशन प्लानिंग भी करनी चाहिए। स्पिरिचुअल सक्सेशन प्लानिंग आपका लेक्चर रखेंगे सर उसके ऊपर। अरे सर 4 तारीख के बाद आपका ही लेक्चर रखेंगे स्पिरिचुअल। वेरी वेल नोटेड सर, वेरी वेल नोटेड। सर अनूप पांडे जी भी ने ज्वाइन कर लिया है सर, उनको भी जरा एक्नॉलेज कर दो सर। वेलकम। कमिंग बैक नाउ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, देखिए अब इंडिविजुअल कैन हैव ट्रस्ट। पहले ट्रस्ट कोई भी बना सकता था। इफ यू हैड टू गिव दैट मनी और एनीथिंग एसेट टू द ट्रस्ट, there was no taxability hand of the trust. Now अगर आप ट्रस्ट को कोई प्रॉपर्टी देंगे, only if it is created by individual and given to the trust, irrevocable trust, तब तो वो टैक्स नहीं लगेगा उस ट्रस्ट को, अदरवाइज वो टैक्स लगेगा। इट इज वेरी क्लियर एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। तो ये बात क्लियर हो गई। अगर किसी को इसके ऊपर क्वेरी पूछनी है तो क्वेरी पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ट्रस्ट क्रिएट सिर्फ इंडिविजुअल कर सकता है।
trust can be established or created by an individual for the benefit of his relative. Benefit of his relative. और relative की definition वही है जो 56(2)(10 में है, जो बहुत बड़ी definition gift के लिए है. वही relative की definition यहाँ पे रखी है. वही relative की definition है, छोटी वाली नहीं है. जो section 2 में relative की definition वो नहीं लेनी. जो section 56 subsection 2 clause 7 में दे रखी है, वही definition relative की आपने लेनी है. तो यहाँ कोई क्वेरी है तो राजेश जी तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा. सर अभी कोई क्वेरी नहीं है सर रिलेटेड सर. तो ट्रस्ट सिर्फ इंडिविजुअल बना सकता है और कोई ट्रस्ट नहीं बना सकता, ये पहले बता दूं. अगर बनाएगा तो जो भी आप कॉर्पस देंगे, जो भी अमाउंट डोनेट करेंगे ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट के हाथ में इनकम टैक्स लगेगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10. ये क्लियर हो गया. हाँ, आप ट्रस्ट बना सकते हैं. दो तरह के ट्रस्ट बनते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रस्ट होता है और एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होता है. ट्रस्ट में क्या होता है? एक सेटलर होता है, एक फाउंडर होता है, एक बेनिफिशियरीज होते हैं. बीच में हम ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं, वो लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट. ट्रस्टी, सेटलर, बेनिफिशियरीज, ये तीन लोग ट्रस्ट में होते हैं. और ट्रस्ट अगर लीगल पर्पस के लिए है तो आप ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ योर रिलेटिव एंड नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स. बनाने में आप किसी के लिए बनाइए, टैक्स लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर इंडिविजुअल के रिलेटिव के लिए बनाएंगे और इंडिविजुअल उस पर डोनेट करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट को कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब ये दो तरह के ट्रस्ट हो सकते हैं, स्पेसिफिक ट्रस्ट और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. स्पेसिफिक ट्रस्ट अश्विनी जी क्या होते हैं? Where the beneficiaries and their shares are defined. बेनिफिशियरी भी डिफाइन कर दिया गया कि ये बेनिफिशियरी है, ABCDE नाम देने पड़ेंगे. बेनिफिशियरीज एंड देयर शेयर्स आर डिफाइंड. और ये बोला कि ये जो इनकम आएगी वो किस रेशो में आप यूज करेंगे. ट्रस्टी को डायरेक्ट कर दिया गया, सपोज 40% ईयर, 30% ईयर, 10%, 5%, 8%, इस तरह करके आपको बताया जाएगा. तो शेयर्स डिफाइंड है और बेनिफिशियरी भी डिफाइंड है, उसे स्पेसिफिक ट्रस्ट कहते हैं. और दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, वेयर द बेनिफिशियरीज एंड आइदर द बेनिफिशियरीज और देयर शेयर आर नॉट डिफाइंड. या तो बेनिफिशियरी डिफाइंड नहीं है या उनके शेयर डिफाइंड नहीं है. डिस्क्रिशन दे दिया गया, ट्रस्टी को जैसे चाहे वो यूज कर सकता है उसके बेनिफिट के लिए. किसी को ज्यादा दे सकता है, किसी को कम दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ दैट पर्सन. ये क्लियर हो गया सर? बेनिफिट क्या हो. और कई लोग डबल दोनों बनाते हैं, कुछ एसेट के लिए स्पेसिफिक ट्रस्ट, बाकियों के लिए डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. क्लियर हो गया सर? अब मैं बोल रहा हूं, अगर वो स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 लगता है. सुनील जी, सेक्शन 161(1) कहता है कि अगर वो स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो ट्रस्टी को टैक्स नहीं लगता. ट्रस्टी विल फाइल ए रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी एंड ही इज लायबल और ही विल हैव सेम ड्यूटीज, सेम रिस्पांसिबिलिटी, सेम लायबिलिटीज which would have been there in the case of beneficiary. लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ट्रस्टी रिटर्न भरता है ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी. अगर 4 बेनिफिशियरी ABCD है, रेशियो डिफाइंड है, तो वो 4 रिटर्न भरेगा, ट्रस्ट की रिटर्न नहीं भरेगा सर. ही इज नॉट फाइलिंग द रिटर्न ऑफ द ट्रस्ट, ही इज फाइलिंग द रिटर्न ऑफ ईच बेनिफिशियरी एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी. But it will be presumed as if he has received the income in representative capacity. और वो असेसमेंट चारों असेसी की होगी, आपको उसमें रिटर्न भरनी पड़ेगी और वो बेनिफिशियरी को टैक्स लगता है. लगता कौन है? थ्रू ट्रस्टी. वो टैक्स उसी रेट पे लगेगा जिस रेट पर वो इंडिविजुअल जो भी बेनिफिशियरी है उसका रेट एप्लीकेबल होगा. So there is no question of any return of a trust. The return is of the beneficiaries whose shares are defined and उनकी return है. Who is filing the return? There can be 20 beneficiaries, 20 return. There can be 21, 50 beneficiaries, 50 return. Who will file? The trustee or trustees. There can be more than one trustee also. Trustee or trustee will file the return on behalf of these beneficiaries. Clear हो गया सर? आगे
डिस्क्रिशनरी। सर इसमें एक सेक्शन है 161(1)(a) और वो 1(a) कहता है कि अगर ये ट्रस्ट कोई बिजनेस कर रहा है, if this trust is carrying on a business, then this trust will be liable to pay tax at the maximum marginal rate. Please note the word maximum marginal rate. और maximum marginal rate पावा जी 30% है, सबको पता है। अब एक इसमें प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी कि सरचार्ज कितना लगेगा। अभी तक मैं भी कहता था कि सरचार्ज मैक्सिमम लगेगा 37%। मैंने कहा, और किताबों में भी लिखा है और सभी यही कहते थे। फिर भी मैंने डिस्कशन किया डिपार्टमेंट जाकर, I asked them what will be the rate. Option 4 they said 37%. I said okay. Somebody else I asked, the person who makes the law, 37%. Since it is maximum marginal rate, that surcharge will also be maximum because it will add surcharge a penny. सुनील जी फिर मेरी बात हुई, इनकी जो यूटिलिटी है उसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट नहीं लेता, उसमें वो स्लैब रेट लेता था। मतलब अगर स्लैब 50 लाख से कम इनकम है एओपी की, एओपी होगा ना ट्रस्ट, तो वो कोई सरचार्ज नहीं लेता था। 50 से 1 करोड़ है तो 10% मांगता था, 1 करोड़ से अबव है तो 15% मांगता था, 2 करोड़ से अबव है तो 25 मांगता था, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37। मैंने आपको बोला, आपने लॉ बनाया और आप 37% कह रहे, द अनदर मैडम इज आल्सो सेइंग 13%, और आपकी यूटिलिटी तो ये कहती है। और जब सॉफ्टवेयर में जाओ तो कई जगह 37% ही। सर डिस्कशन हो गया एंड फाइनली इट इज डिसाइडेड नाउ, they have accepted it that it will be depending upon the slab. No question of 37%. Means if your income is less than 50 lakh, no surcharge. Only education says. If your income is more than 50 lakh but does not exceed 1 crore, the surcharge will be, you know that 15%. वही जो individual का surcharge. Clear हो गया कोहली साहब? ये point बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको कराना चाहता था। हम तो अभी तक फॉर्म 5 में सरचार्ज हमेशा 37% देखा करते थे कई जगह, लेकिन अब ये क्लैरिटी आ गई, इसलिए क्लैरिटी अभी उन्होंने दी नहीं है, वो करेंगे। दे आर सेइंग वी विल कम आउट विद दैट, बट इन एनी केस जो यूटिलिटी में फाइल करता है वहां सरचार्ज ऐसे ही लगता है, ये मैं आपको बता दूं। क्लियर हो गया सर ये पॉइंट कि सरचार्ज अब 37% नहीं होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30% ही लगेगा, कोई स्लैब नहीं लगेगा दमीजा जी, बट सरचार्ज विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। वो भी आपको पता है कि अगर कोई डिविडेंड आएगा या कोई कैपिटल गेन आएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो उसका सरचार्ज 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। वो तो इंडिविजुअल के केस में भी वही है, तो वो 15% से ऊपर तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी आप सोच लीजिए। क्लियर हो गया सर? ये पॉइंट किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। any wants to ask anything? This clarity I am giving, but I am not sure what the softwares are showing. Whether many software are showing 37%, even my book is saying 37%. What to talk about others? So मैं खुद एडमिट कर रहा हूं कि हमने भी 37% लिखा है, लेकिन अब क्लैरिटी अभी भी आनी है, बट यूटिलिटी में वो अलग अलग रेट लेता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सर? एनीथिंग डाउट? चलिए, ये अगर आपका डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो आपको मैक्सिमम मार्जिनलिटी लगता है। कुछ केसेस है जब नहीं लगता, वो पॉइंट मैं आज इस वक्त नहीं बता रहा, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the taxation of private trust. I just wanted to tell you one way of succession planning and avoidance of inheritance taxes. You go for private trust, and when you go for private trust, there is no question of any inheritance tax, because that will be perpetual for a certain period of time. May not be full, but yes, you can always give up to this date or this, or dissolution clause may be put at the end that what time it will dissolve. Clear हो गया सर? मैं वापस आ रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि दो चीजें और हैं। आप अपनी प्लानिंग नहीं करते, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम बिल लिख देंगे, 99% टाइम में लिखा ही रह जाता है, सोचते ही रहते हैं, हम बिल लिखते नहीं। विल का अगर आप लिखते हैं
तो हमारी कंट्री में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लगता है। एज पर, अगर इफ यू राइट ए विल, देयर इज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. If I don't write a will, everybody knows we have a very important act हिंदूज के लिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. कंफ्यूजन लोगों को बहुत है, ये 50 से पहले लॉ कुछ डिफरेंट था, आफ्टर 56 the things have changed altogether. और 56 में भी 2005 में काफी चेंज आई, वो भी अभी बताऊंगा। तो आइए, कुछ कोहली साहब पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। हाथ साहब कुछ किया था, कोई क्वेश्चन है कोहली साहब? नहीं, चलिए सुनिए। मैं पहले इंडियन, अगर तो विल लिखी है तो यूर प्रॉपर्टी विल पास ऑन एज पर द विश ऑफ द टेस्टेटर। जिसने विल लिखी है उसके हिसाब से जो भी जिस तरह लिखी है वो प्रॉपर्टी पास ऑन होती है। और विल में नॉर्मली हम एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं, हु एग्जीक्यूट द विश ऑफ द टेस्टेटर। लिख दूंगा, वो बता दो। लेकिन पहले मैं हिंदू सेक्शन 1956 में आ, और उसका सेक्शन 8 ले रहा हूं। सेक्शन 6 तो एचयूएफ से डील करता है, सेक्शन 8 जो हिंदू सेक्शन एक्ट का है वो इंडिविजुअल डेथ से डील करता है, जिसे कहते हैं इंटेस्टेट डेथ, डेथ विदाउट राइटिंग ए विल, इंटेस्टेट डेथ। ये भी हो सकता है कुछ एसेट की मैंने विल लिख दी दबीजा जी, और कुछ एसेट को मैंने विल में नहीं लिखा। जिसकी विल लिख दी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, जिसकी विल नहीं लिखी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अगर बिल्कुल नहीं लिखी तो हिंदू सेक्शन 1956। हिंदू इंक्लूड्स जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ हिंदूज। अब आइए सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 को 6 से 13 जो है ना नबीजा जी, वो मेल की डेथ का है, मेल डेथ। और 14, 15, 16 सेक्शन फीमेल की डेथ का है। अब क्या कहता है सेक्शन से? इफ ए हिंदू मेल डाइज इंटेस्टेट, क्लियर हुआ सर? हिंदू मेल डाइज इंटेस्टेट मीन्स विदाउट राइटिंग अ विल, his estate, his property will pass on to his legal heir. Pavaji, legal heir of class 1 in individual capacity, in equal ratio. 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पावाजी। एक तो मेरे मरने के बाद अगर मैंने बिल नहीं लिखी तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे लीगल हेयर ऑफ क्लास 1 को जाएगी। लीगल हेयर ऑफ क्लास 1 किस रेशियो में? इक्वल रेशियो। और किस कैपेसिटी में जाएगी? क्या वो एचयूएफ की कैपेसिटी में जाएगी? जी नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएगी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे बच्चों को मिलेगी, वो कहीं एचयूएफ नहीं बनेगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बनेगी, वो हर आदमी को प्रॉपर्टी मिलेगी इंडिविजुअली, उसके नाम पे जाएगी। अगर मैं इंटेस्टेट डेथ है, माई लीगल हेयर ऑफ क्लास 1 इन इक्वल रेशियो एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी। सपोज कीजिए पावा जी मेरे 4 लीगल हेयर हैं क्लास 1 के, तो 25, 25, 25, 25। अगर 3 लीगल हेयर हैं तो 1/3, 1/3, 1/3। अगर मेरे 2 ही लीगल हेयर क्लास 1 के हैं तो 50-50। क्लास 2 वाले को कुछ नहीं मिलना, 50-50। मेरा एक ही लीगल हेयर क्लास 1 में है तो 100% लीगल हेयर को जाएगी, उसको आगे कुछ नहीं करना, 100% जाएगी। लेकिन अगर मेरा एक भी लीगल हेयर क्लास 1 में नहीं है तो क्लास 2 चक्कर आता है। क्लास 2 की तरफ देखना ही नहीं है अगर क्लास 1 में एक ही है, एक भी है तो मैं पहले क्लास 1 को ला रहा हूं। कौन कौन क्लास 1 में आते हैं? नंबर 1 बाई वाइफ, क्योंकि मैं मेल की डेथ कर रहा हूं तो वाइफ। नंबर 2 चिल्ड्रन मीन्स बोथ सन एंड डॉटर्स, 1, 2, 4 जितने भी बच्चे हैं, सन्स एंड डॉटर। चिल्ड्रन तभी वर्ड यूज किया, सन नहीं किया, चिल्ड्रन। एंड एक और है पावा जी, और उसका नाम है मदर। मदर को भी मिलता है इक्वल शेयर
वेदर शी इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर का 1/4 शेयर है। अगर 4 आदमी हैं, एक मेरी बीवी, एक मेरी माँ और 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, 1/4 मेरी मदर को मिलेगा, 1/4 मेरी वाइफ को मिलेगा, 1/4 मेरे सन को मिलेगा, 1/4 मेरी डॉटर को मिलेगा। ये इक्वल रेशो इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये क्लियर हो गया। पहले कोई हक नहीं है पोते का, कोई हक नहीं है बेटी के बच्चों का, है ही नहीं किसी का, सिर्फ 4 आदमी का। 4 फादर का भी नहीं, मदर का सब रहेगा। मदर को मिले। अभी रुको, फादर को कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं। फादर को तो सेकंड में आएगा, पहली कैटेगरी में फादर है ही, पहली क्लास में नहीं है। मदर है, मदर को उतना ही मिलेगा जितना बीवी को मिलेगा। ये भी नोट कर लो, जितना बीवी का उतना मदर। मदर तो एक है, बीवी तो एक से ज्यादा भी हो सकती है। बीवियों को एक ही मिलेगा, चाहे 2 या 3 हो, सब मिलाकर एक। और मदर को भी एक शेयर। पहले ये क्लियर हो गया। अभी तो मैं सब जिंदा है इसलिए सोच के भगवान करे माँ भी जिंदा है, बीवी भी जिंदा है, बच्चे भी जिंदा है, ये हो। और सपोज मदर अलाइव नहीं है, मेरी मदर अब नहीं, तो क्या उसका शेयर कैलकुलेट होगा? जी नहीं, जी नहीं। हैड शी बीन अलाइव शी वुड हैव गॉट इट। अगर नहीं है तो खत्म। तो बाकी 3 ही रह गए, वाइफ 2 बच्चे, 1/3 1/3 1/3। ये क्लियर हो गया। मदर होती तो मिलता, मदर नहीं है तो नहीं मिलेगा। ये क्लियर सर? क्लियर। अब सपोज करो मदर थी तो मिलता, अब मदर भी नहीं है। सॉरी, मेरी वाइफ भी मेरी नहीं है, शी डाइड 2016, तो वाइफ का भी कोई शेयर होता, शी वुड हैव गॉट इट। नहीं है तो शी विल नॉट गेट इट। कुछ नहीं, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं। अब कौन बचे? बच्चे ही बचे। अगर 2 बच्चे हैं तो 50-50, 3 बच्चे हैं 1/3 1/3 1/3। अरे एक ही होता तो 100%। ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़े, स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। भगवान ना करे बेटा था लेकिन उसकी डेथ फादर की डेथ से पहले हो गई। सन प्री डिजीज द फादर। हो सकता है, भगवान ना करे पर हो तो सकता है ना। बेटे की डेथ हो गई कब? बाप के मरने से पहले। ये मैं बाप को मार रहा हूं, बेटे को नहीं मारा, बेटा तो मर चुका है। बाप के मरने से पहले बेटे की डेथ हो चुकी है, तो क्या होगा? मैंने बीवी की डेथ का तो कह दिया, कुछ नहीं। माँ की डेथ कह दिया, कुछ नहीं। बेटे की डेथ हो गई तो क्या होगा? यहां हम रुकेंगे, हम सवाल पूछेंगे, क्या बेटा मैरिड था या अनमैरिड था? अगर बेटा अनमैरिड था और उसकी डेथ हो गई प्री डिजीज फादर, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर? होता तो लेता, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर शादी नहीं, अगर उस बेटे की शादी हो चुकी थी और अब उसकी डेथ पहले हो चुकी है फादर की डेथ से, तो जो फादर की स्टेट है, जितना शेयर बेटे का बनता था, had he been alive, what would have been the share of the son had he been alive? अगर उस दिन जिंदा होता तो कितना मिलता? वो उसकी वाइफ और बच्चों को मिल जाएगा इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो। सपोज कीजिए, मैं दोबारा एग्जांपल ले रहा हूं, मां भी जिंदा थी, बीवी भी जिंदा थी, एक बेटा था, एक बेटी थी। सर बुरा ना मानना, दुनिया कुछ भी हो सकती है। और बेटा शादीशुदा था, और शादीशुदा, अगर शादीशुदा नहीं था तो शेर ही, शादीशुदा था लेकिन उस बेटे की पहले ही डेथ हो गई, हो चुकी है, अब फादर की डेथ हुई है। व्हाट वुड हैव बीन दिस सन्स शेयर हैड ही बीन अलाइव? सबको पता है 1/4 होता है, एम आई राइट? वो 1/4 शेयर उसकी बीवी और बच्चों को मिल जाएगा, इक्वल रेशियो। अगर उसकी बीवी है सिर्फ तो सारा उसको मिल जाएगा। बीवी के 2 बच्चे हैं तो 1/4 का 1/12 बीवी को मिलेगा, 1/12 बेटी मिलेगा उसके, और 1/12 उसकी बेटी को मिलेगा। ये क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। एनीवन नॉट क्लियर?
what would have been his share had he been alive would go to his legal heir. और उसके लीगल हेयर कौन है? His wife and children. क्लियर सर? क्लियर सर? इसी तरह बेटी की भी डेथ हो जाए और शादीशुदा थी, अगर शादीशुदा नहीं थी तो नहीं, शादीशुदा थी और उसकी डेथ हो जाए, what would have been her share had she been alive will go to whom? किसके पास जाएगा? सिर्फ बच्चों के पास, हस्बैंड के पास नहीं जाएगा। ओनली चिल्ड्रन, ओनली चिल्ड्रन। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ओनली हर चिल्ड्रन। क्लियर हुआ सर? हस्बैंड को नहीं मिलेगा। अब बहुत आगे बढ़ रहा हूं। प्री डिजीज सन ऑफ ए प्री डिजीज सन, बहुत बड़ी बुरी बात है कि भाई बच्चा भी मर गया, बच्चे का बच्चा भी मर गया और दादा भी जिंदा है। What would have been his share had he been alive will go to his legal heir. अगर वो शादीशुदा है, लीगल हेयर इन इक्वल रेशियो इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। समझ में आ गया? ऐसे ही बेटी का है, ये क्लास 1 की। अब ये जो पोता है ना राजीव जी, ये तभी पिक्चर में आएगा जब उसका बाप की डेथ हो चुकी है। अगर बाप है तो पोते को कुछ नहीं मिलना, बाप है तो पोता पोती को कुछ नहीं मिलना। हाँ, बाप प्री डिजीज हो गया हुआ है उसका तो मिलेगा। ये जो माँ, ये जो बेटी है ना, अगर बेटी जिंदा है तो बेटी के बच्चों का कोई हक नहीं। नाने की प्रॉपर्टी में बेटी के बच्चों का कोई हक नहीं है बाबा जी। लेकिन बेटी मर गई है और बेटी का शादी थी हुई तो फिर उसके बच्चों का हक उतना ही होगा जितना उसका हक था। ये क्लियर कर दिया मैंने। आज स्लो चल रहा हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि भैया ये क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज पूछना चाहूंगा सर। ये अभी आपने बताया कि अगर मेल की डेथ होती है तो उसकी मदर क्लास 1 में आ जाती है। अगर वाइफ की डेथ होगी तो कौन सी मदर आएगी? मारा ही नहीं बीवी को। नहीं, अगर 14-16 में मारूंगा, सेक्शन 14-15-16 आएगा ना। अभी तो 8 से 13 हो रही। सर अभी मेल का चल रहा है, फीमेल का नहीं आया सर। सर लेट अस कम टू फीमेल डेथ। अभी तो मेल डेथ है। जब फीमेल की डेथ होगी तो बात आऊंगा, इंतजार कीजिए। अभी फीमेल की डेथ नहीं करी, अभी मेल की डेथ। क्लियर है ना? हम करेंगे सेक्शन 14, 15, 16। लेकिन अभी लास्ट वाला आपने जो बोला है, ये नाना वाला जो लास्ट अभी बोला था, वो क्या चीज? नाना जिंदा है, नानी बेटी मर गई। नाने की प्रॉपर्टी है, बेटी थी शादीशुदा, वो मर गई बिफोर डेथ ऑफ द नाना, तो उसके जो शेयर बेटी का बनता है वो उसके बच्चों को मिलेगा। और अगर बेटी है वो तो बेटी को मिलेगा ही। वो तो है, अगर बेटी है तो बच्चों को नहीं मिलेगा, बेटी के बच्चों को नहीं मिलेगा। जब तक बेटी है बेटी के बच्चों को नहीं। जब तक बेटा और बेटी है उनके बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। ये पता नहीं लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि पोता दादे की प्रॉपर्टी का हकदार है, वो HUF में है। यहाँ कोई हक वगैरह नहीं। HUF बात ही अलग है, ये HUF नहीं है, ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया सर? एनी डाउट, एनीथिंग? अनु जी कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं। चलिए, और कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। अभी क्लास 1 खत्म हुआ है और सपोज करो क्लास में एक भी नहीं है, ना बेटी रही, भगवान ना करे, ना वाइफ रही, ना मदर रही, ना बेटा, बेटों के बच्चे भी नहीं, बेटी भी नहीं रही, बेटी के बच्चों भी नहीं। तो अब किसको दे? क्लास 1 में कोई भी नहीं है, और क्लास 1 में एक भी होता तो 100% मिल जाता। तो आइए क्लास 2 में जाइए। क्लास 2 में अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग लाइन है। अगर कोई क्लास 1 का नहीं है तो सारा का सारा पैसा उसके फादर को मिल जाएगा। किसको मिलेगा? फादर को। किसको मिलेगा? फादर। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। कोहली साहब, एक मेल मेंबर है, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी डेथ हो गई। मेल मेंबर है, शादी नहीं हुई, उसकी डेथ हो गई। उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? पहला नंबर माँ के पास जाएगी। माँ के पास जाएगी। अगर माँ जिंदा है तो क्लास 1 में आ जाएगी। बीवी है नहीं, बच्चे है नहीं, तो माँ के पास जाएगी। ये क्लियर है कि नहीं? बीवी नहीं है, बच्चे भी नहीं, तो कहाँ जाएगी?
माँ के पास जाए। क्लियर? माँ, अगर वो अनमैरिड था और माँ की डेथ हो चुकी है तो किसके पास जाएगी? फादर के पास जाएगी। वो क्लास 2 में चली जाएगी, फादर। ये क्लियर हो गया पहले पॉइंट। अभी फादर के पास आया हूं मैं, अभी आगे बढ़े। सेकंड पॉइंट, बेटा था, एक मेल है, शादीशुदा था, शादीशुदा था, बच्चे भी थे, माँ भी थी, सब मर गए। अब उसकी प्रॉपर्टी है, किसके पास जाए? माँ है नहीं, बीवी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, थे या बच्चों की डेथ हो गई, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं है, तो किसके पास जाएंगे? फादर के पास। फादर के पास। फादर का नंबर तभी आना है जब क्लास 1 में कोई नहीं है। ये क्लियर हो गया सर? जब तक क्लास 1 में एक भी है, फादर को कुछ नहीं मिलना। अब फादर भी नहीं है तो क्या होगा? सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, इक्वल रेशियो। ये सेकंड में है, सेकंड स्टेप। फादर नहीं है तो किसको मिलेगा? इसके बेटे की बेटी का बच्चे या एंड उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को मिलेगा। सपोज बेटा के बेटी के बच्चे नहीं और भाई एक है, 2 बहनें हैं, 1/3 1/3 1/3। बेटे के बेटी के बच्चे 2 हैं, एक भाई है, एक बहन है, 1/4 1/4 1/4 1। ये क्लियर हो गया सर? ये क्लियर हो गया सर? अगला पॉइंट, डॉटर्स ग्रैंड चिल्ड्रन। अगला पॉइंट, वो भी नहीं है, डॉटर्स ग्रैंड चिल्ड्रन। सिबलिंग्स ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के बच्चों को मिलेगा, इक्वल रेशियो। भाई और बहन के बच्चों को मिलेगा इक्वल रेशियो, प्रोवाइडेड ऊपर वाले कोई नहीं है, वो भी नहीं है। तो बाबा जी स्टेप वाइफ, जो दूसरी वाइफ एंड विडो ऑफ द ब्रदर्स मिलेगा। विडो ऑफ द ब्रदर, स्टेप ब्रदर बोलते हैं यहां, और विडो ऑफ द ब्रदर्स वो भी नहीं है। फादर पेरेंट्स को मिलेगा, उसके पेरेंट, फादर के पेरेंट्स, उसके फादर के पेरेंट्स को मिलेगा। वो भी नहीं, मदर के पेरेंट्स को मिलेगा। इससे आगे जाने की जरूरत है सर। अगर सेकंड कैटेगरी भी नहीं है तो फिर एग्नेट्स होते हैं। एग्नेट होते हैं फादर के उसके फादर के रिलेशन जो कवर नहीं हुए, और एग्नेट्स नहीं होते तो कॉग्नेट्स होते हैं, मदर के रिलेशन जो ऊपर कवर नहीं हुए। बस ये है सर डेथ, इंटेस्टेट डेथ कैसे प्रॉपर्टी पास होनी है, क्लास 1 क्लास 2, एग्नेट्स कॉग्नेट्स। तो अगर कोहली साहब मुझे पूछते हैं कोई भी नहीं, तो हम सवाल देते हैं तो इस दुनिया में आया क्या है करने, तेरा का तो कोई है ही नहीं, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जाएगी वो प्रॉपर्टी को। क्लियर हो गया सर? ये है सर सक्सेशन मेल का, जिसमें आपने विल नहीं लिखी है। अगर विल लिखी होती तो विल के हिसाब से जाता। क्लियर हो गया? कोई पॉइंट, कोई चीज ना समझ में आई हो, आज मैं बड़े प्यार से आराम से कर रहा हूं, पूछ सकते हैं। पूछिए, कुछ है तो। है जी कोई चीज? कोहली साहब, कोई राजेश जी, कोई सुनील दमीजा जी, कोई पूछना चाहे या किसी की क्वेरी? हाँ, अनु जी पूछ रही है, बोलो अनु जी। फीमेल को मैंने अभी डेथ नहीं करी है। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही। अनु जी की आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? किसने रोक रखी है? नहीं आई मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आ रही है क्या किसी को अनु जी की आवाज? नहीं आ रही। नॉट ऑडिबल मैम, प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट करिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके यहाँ। अभी अनम्यूट है, अब करिए। अब आपका लाल आ गया, अब करेंगे तो म्यूट अनम्यूट हो जाएगा। पहले वो लाल नहीं आ रहा था। अब करिए, अब बोलिए। नहीं आ रही। नहीं जी,
आपके कहीं वो माइक में कहीं गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही। इनका माइक कनेक्टेड नहीं है, माइक में कुछ कनेक्शन गड़बड़ है जी। नहीं तो वो उस पे लिख दीजिए बॉक्स पे, क्वेश्चन बॉक्स में, तो आंसर कर देंगे। चलिए, और किसी की क्वेरी सर है जी? कोई कोहली साहब, कोई पावा जी? आइए फिर आगे चलते हैं। अब मैं 14, 15, 16 ले रहा हूं। ए फीमेल डाइज, ए फीमेल हिंदू डाइज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब विदाउट राइटिंग अ विल। फिर वही पॉइंट है, अब जमाना बदल चुका है। फीमेल को अपनी प्रॉपर्टी का पहले एब्सोल्यूट राइट नहीं होता था, लेकिन अब फीमेल का एब्सोल्यूट राइट है। जहां से भी उसको प्रॉपर्टी मिले वो उसी की मानी जाएगी, चाहे बाप से मिले, ससुर से मिले, बीवी से मिले, खुद कमाए, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। पहले वो अपनी प्रॉपर्टी मानी नहीं जाती थी। अब शी डाइज इंटेस्टेड, सवाल वही पूछेंगे, शादीशुदा थी? आप कहते हैं हाँ थी। तो जो उसकी स्टेट है, that will go to his husband and children in equal ratio in their individual capacity. एक औरत की डेथ होती है और वो औरत शादीशुदा है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके हस्बैंड और उसके बच्चों को इक्वल रेशियो में जाएगी। ये क्लियर हो गया? इक्वल रेशियो। यहां पर भी यही होगा, क्योंकि अगर उसका बेटा या बेटी, भगवान ना करे, प्री डिजीज हो गई है, तो हम सवाल पूछेंगे क्या वो बेटा शादीशुदा था? अगर नहीं था तो कुछ नहीं। क्या बेटी शादीशुदा थी? अगर नहीं थी तो कुछ नहीं। अगर बेटा शादीशुदा था, उसकी डेथ हो गई है, तो व्हाट वुड हैव बीन हिज शेयर had he been alive? वो उसकी स्पाउस और बच्चों को चला जाएगा। किसको? जो उसके लेडी का बेटा है। अगर बेटा जिंदा है तो बेटे को मिलना है, बेटा जिंदा नहीं है लेकिन शादीशुदा था, तो what would have been the share of that son had he been alive would go to his legal heir in their individual capacity. इसी तरह बेटी का भी है। अगर उसकी बेटी जिंदा है, मर गई, पहले प्री डिजीज हो गई, शादीशुदा थी कि नहीं? शादीशुदा नहीं थी तो कोई शेयर। शादीशुदा थी, what would have been her share had he been she alive? तो उस केस में उसके बच्चों को, बेटी के बच्चों को इक्वल रेशियो में चला जाएगा। इसी तरह प्री डिजीज होता है। अब बच्चे नहीं है, सुनील दमीजा जी कह रहे हैं कि बच्चे नहीं है पर हस्बैंड है, तो किसको जाएगा? लॉ कहता है हस्बैंड को जाएगा, लेकिन रुक जाइए, अगर उस लेडी को अपने पेरेंट्स से कोई इनहेरिटेंस से कोई चीज मिली थी या गिफ्ट से मिली थी और उसके अगर बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड है, तो वो प्रॉपर्टी हस्बैंड को नहीं जाएगी, वो वापस उसके पेरेंट्स को चली जाएगी। अगर पेरेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स के बच्चों को चली जाएगी, उसके हस्बैंड को नहीं जाएगी। ये करा गया था कि लोग डॉरी लेकर उसको जला देते थे, मार देते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जो भी चीजें वहां से पेरेंट्स से आई हैं वो पेरेंट्स को वापस जाएगी, अगर उसके बच्चे नहीं है। हाँ, बच्चे हैं फिर तो बटेगी उस तरह ही, बच्चे नहीं है तो पेरेंट्स को जाएगी। ये क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ू। अभी क्लास 1 में कर रहा हूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे बढ़ू सर। क्लास 1 में कोई चाहे है लेडी की डेथ में? अगर लेडी शादीशुदा नहीं थी तो फिर उसका हस्बैंड भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है, फिर हम उसके पेरेंट्स को देंगे। अगर पेरेंट्स नहीं है तो उसके ब्रदर एंड सिस्टर को देंगे। पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर नहीं है तो उसके ब्रदर सिस्टर के जो सिबलिंग्स हैं उनको देंगे। वो तो शादीशुदा नहीं है लेडी, तो तब की बात हुई। शादीशुदा है तो क्लास 1 में उसका हस्बैंड और उसके बच्चे आ रहे हैं। बच्चे अगर शादीशुदा थे, प्री डिजीज हो गए, तो उसके पोते पोती आ रहे हैं, जो भी उसके नाती नाती आ रहे हैं। ठीक है सर। अगर एक भी नहीं है क्लास 1 का, ना हस्बैंड है, ना बचपन के, ना उसके बच्चे हैं, ना ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो किसको जाएगी? लीगल हेयर ऑफ क्लास 1, लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड,
लीगल हेयर ऑफ हर हस्बैंड। अगर शादीशुदा थी तो नंबर 2 में क्या आ रहा है? लीगल हेयर ऑफ हर हस्बैंड। सुनील जी, मुझे कोई पूछता है लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड तो वो उसके बच्चे ही तो हैं। कहते नहीं, माँ भी तो है, उसकी माँ को चला जाएगा और उसके अपने बच्चे नहीं है, तब जाएगा हस्बैंड के माँ। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके पेरेंट्स को जाएगा, लेडी के पेरेंट्स नहीं है उसके ब्रदर एंड सिस्टर को जाएगा, लेडी के ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है तो ब्रदर एंड सिस्टर के बच्चों को जाएगा। इज दिस क्लियर सर? ये फीमेल डेथ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन हो यू कैन फ्रीली आस्क मी, नहीं तो हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 16 तक कर दिया है। कोई सेक्शन 8 से लेकर 16, नॉट 6, 8 से लेकर 16 तक कर दिया है जी। कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेरी सर, एनीवेयर? कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं बढ़ूं, कोई मुझे बता दे, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अब मैं इनको छोड़ रहा हूं, अब मैं पहले बिल की तरफ आ रहा हूं। मैंने अपनी बिल लिख दी है, मैंने बिल में डिफाइन कर दिया है। जब मैं अपनी बिल लिखता हूं पावा जी, तो मैं किसी के नाम भी दे सकता हूं। जरूरी नहीं है अपने बच्चों को दूं, जरूरी नहीं है अपनी बीवी को दूं, जरूरी नहीं अपने फैमिली मेंबर को दूं, मैं किसी आउटसाइडर को भी दे सकता हूं, मैं मंदिर में भी दान कर सकता हूं, किसी को मैं चाहूं दे सकता हूं, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, ये मेरी विश है, ये मेरी विल, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है और मैंने खुद कमाई है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खुद कमाई क्या, वो वाली प्रॉपर्टी भी जो मुझे इनहेरिटेंस में मिली है अंडर सिंधु सक्सेशन एक्ट, वो 56 के बाद मिली है, वो भी तो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो भी तो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। मैं किसी को भी दे सकता हूं, किसी भी रेशो में दे सकता हूं। किसी को मत दूं, बीवी को ना दूं, सिर्फ बच्चे को दे दूं, एक बच्चे को ना दूं, दूसरे बच्चे को दे दूं, दोनों का ना दूं, बेटी को दे दूं, बेटी को ना दूं, ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दूं, ये तो मेरी मर्जी है, मैं जिसके मर्जी नाम कर दूं। कई बार लोग विल लिखते हैं तो वो ये बिल 2 तरह की होती है। एक बिल आप जब लिखते हैं तो प्लीज प्लेन पीस ऑफ पेपर में लिखनी है। कोई इसका वो नहीं है, स्टैंडर्ड कोई लैंग्वेज है, कुछ नहीं है। ऑन सिंपल प्लेस पीस ऑफ पेपर, कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगानी, प्लेस ऑफ पेपर में लिख सकते हैं। सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहिए और 2 विटनेस चाहिए, सिग्नेचर और 2 विटनेस। विटनेस को विल के कंटेंट्स पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। सिर्फ वो तो ये कह रहा है कि मेरे सामने इन्होंने सिग्नेचर किए हैं इस विल के ऊपर, उसका पर्पस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। हम बिल बनाते हुए कई बार सीनियर लोगों को ले लेते हैं, वो ध्यान रखिए कि सीनियर लोगों को लोगे तो फिर वो बिल के टाइम पे हो सकता है वो आपसे पहले निकल गए हो, तो जरा यंग लोगों को लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो वो अर्ज प्रूव करना पड़ता है क्योंकि सिग्नेचर थे। तो आगे कोई ऐसी बात, आगे बढ़ो। विल करते हुए मैंने कहा 2 सिग्नेचर जरूरी है और आपके 2 विटनेस जरूरी है और आपके सिग्नेचर होने जरूरी है। विल आप चाहें तो रजिस्टर कराएं, नहीं चाहे तो नहीं रजिस्टर कराएं, ये आपकी मर्जी है। दोनों विल वैलिड है। गुप्ता जी, जो बिल वैलिड है उसमें ये चीज मैं बता दूं, गुप्ता जी चले गए, मैं नाम लिया और चले गए। अरे भैया मैं कुछ बता रहा हूं आपको, देखिए दोनों बिल है। मैं हूं सर, यहीं पर हूं सर, गाड़ी में है ना? हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूं। बिल जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड कराना, लेकिन रजिस्टर्ड बिल के कुछ फायदे होते हैं, जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड कराना। एक चीज तो पहले बता दूं, जो विटनेस कराए तो हो सके तो एक विटनेस डॉक्टर हो जो लिख दे कि ये मतलब साउंड माइंड का था और मेरे सामने इसने सिग्नेचर किए। क्योंकि कई बार बाद में जब झगड़े होते हैं तो कहता है मेरा बाप तो पागल था, अनसाउंड माइंड था, उस वक्त शराब पिए हुए था, उसको कुछ पता ही नहीं था, उसने साइन कर लिए या पोर्शन से करा लिए या जबरदस्ती करा लिए, आपको पता ही है। तो विल एक और दूसरा
एक लॉयर से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा दीजिए, वो बता देगा कि भाई हाँ इसको मैंने बता दिया था कि विल का पर्पस क्या है क्या। 2 विटनेस होने विल के अंदर। और एक चीज बताओ, अगर आप रजिस्टर करा लेंगे तो बहुत फायदे हैं। एक तो आपको रजिस्टर कराने के लिए खुद जाना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था, अब जाना पड़ता है। वहां पर फोटोग्राफ होती है, वहां रिकॉर्डिंग भी होती है, वहां पर सिग्नेचर भी कराई जाती है, और तो इसलिए वो मोर ऑथेंटिकेटेड हो जाती है। और उसमें ये भी लगता है कि वो होशआवास में उसने बिल रजिस्टर कराई है। बहुत छोटा सा अमाउंट लगता है बिल रजिस्टर कराने का, ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आपको 2 विटनेस वाले जाने पड़ते हैं। और जरूरी नहीं है सर कोहली साहब कि वो विटनेस वही हो जिन्होंने साइन किए थे ओरिजिनल बिल पे, ना, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई और भी विटनेस ले जा सकते हैं, लेकिन वो चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं जाए तो वो सिर्फ विटनेस ये कर रहे हैं कि मेरे सामने रजिस्टर करें, वो उसका वो कोई बात नहीं। रजिस्टर कराने में बिल खोती भी नहीं है, वो मिल जाती है ना वहां कॉपी, बिल खोती भी नहीं है। मैं कहूँगा जो बिल लिखते हैं ना तो उसमें एग्जीक्यूटर जरूर रखिए। एग्जीक्यूटर मतलब जो विल लिखने के बाद वो उसको उसकी विश को जब उसकी डेथ हो जाएगी तो एग्जीक्यूट करेगा कि इस तरीके से प्रॉपर्टी बांटनी है। अरे कई इस बार 10-10 साल लग जाते हैं प्रॉपर्टी बांटने में, बिजनेस भी चलता रहता है। मैं एक चीज बताऊं पावा जी, लोग कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए डिस्प्यूट, या कहते हैं वेयर देयर इज ए विल देयर इज गारंटीड रिलेटिव। क्यों होता है कि विल जब आप कर रहे हैं, हो सकता है आप बराबर अपने बच्चों को या जो भी फैमिली मेंबर जिनकी राइट है उनको ना दें, तो झगड़ा तो होगा। तो वो कहेंगे मेरा बाप पागल था, मेरा बाप अनसाउंड माइंड का था, या ये कोर्शन से करा ली, अनड्यू इन्फ्लुएंस से करा ली, फ्रॉड से कराई, दिस हैज बीन डन, और वो डिस्प्यूट होता है। और आपको तो पता है पावा जी, अगर विल करानी हो ना तो एम सील जरूर लगवा लेना। वो कहते ये क्या है एम सील लगवा लेना? वो आपने पिक्चर को देखा है ना, टीवी का ऐड, वो बेटा बाप डेथ बेड पे है, वो लिख रहा है 100000, ऊपर से पानी गिर जाता है, वो 10 बन जाता है। तो वहां का ऐड है एम सील लगवानी थी तो आप बच जाते, एम सील नहीं लगवाई। मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? पर्पस देखिए कितनी ज्यादा ये उनकी वो होती है। ये कहने का है कि अगर आपने कोई ऐसी बिल भी कराई है तो सेफ्टी पूरी ले लीजिए, एफसी का मतलब ये है। तो मेरा मतलब है बिल आप करवा सकते हैं और बिल में आप जितना चाहे जिसको दे सकते हैं, लेकिन डिस्प्यूट होने के खतरा यही है कि वो कहता है कि ये मेरा बाप मेरे भाई के साथ रहता था और जबरदस्ती भाई ने मुझसे साइन करा लिया, मैं तो अमेरिका था या मैं तो कहीं और रहता था, या ये करके फ्रॉड करके अनड्यू इन्फ्लुएंस करके या बाप को करके करा दिया। और बाप भी चाहता है कि यार मैं इसके पास रहता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा तो इसको दे दूं, सोचता तो है ना सर, वो भी है। और कई बार होता है डिसगारंटेड क्यों है कि 4 बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका में है, बाप ने सोचा उसने तो बहुत पैसा कमा लिया है, उसको देने की क्या जरूरत है, तो सबसे ज्यादा लड़ने वही आ जाता है कि जबरदस्ती इसे करा लिया गया। तो बिल कराते हुए थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि साउंड माइंड अगर डॉक्टर लिख दे और फिर आपने रजिस्टर करा लिया तो उससे थोड़ा ऑथेंटिकेशन बोर बन जाता है, लेकिन किसने जो झगड़ा करना है उसका तो कोई तरीका है ही, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, लड़ाई कम होती। और एक और बात है सर, विल पे एग्जीक्यूटर रखिए और विल की कॉपी कई बार पता ही नहीं होता लोगों को कि विल हुई है। कम से कम ऐसी जगह तो रख दीजिए या ऐसे आदमी को दे दीजिए। आपने देखा पिक्चरों में आता है वो वकील लेके आ जाता है बिल, ये रही आपकी बिल, तो ये हुआ। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी रखनी चाहिए कि जहां पर वो बिल एक्सेसिबल हो। मैंने देखा है सर दमीजा जी 12 साल बाद बिल मिल गई और वो इंटरस्टेट डेथ हो चुकी। वो कभी ये अभी तो ये जो डीमोनेटाइजेशन आया ना, हर अलमारी को छाना गया, नोट तो मिले, एक विल भी मिल गई किसी की, वो कहता मर गया हमने, ये तो 12 साल बाद देखी वो बिल आ गई, क्योंकि नोट बड़े मिले हैं तो बिल भी वहां आ गए। तो सारे एक एक कपड़ा छाना होगा, वो एक एक अलमारी छानी होगी तो बिल नजर आ गई।
तो ये विल को जो है ऐसा नहीं। और दूसरी बात है, विल तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। विल तो एग्जीक्यूट तो तब होगी जब डेथ होगी। डेथ से पहले यू कैन चेंज योर विल एनी टाइम यू वांट। लास्ट विल ही मानी जाती है, चाहे लास्ट विल, पहली विल रजिस्टर्ड हो दूसरी ना रजिस्टर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिस्प्यूट करने के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है कि यह तो जबरदस्ती बन गई, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड वाली तो अलग थी। उल्टा भी हो सकता है, पहले अनरजिस्टर्ड हो फिर रजिस्टर्ड हो, आप क्या मर्जी विल चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी नहीं। और कंडीशनल विल भी होती है दिवीजा जी। जैसे मैंने विल लिख दी, सपोज कि ये मेरा घर है, इसमें मेरा बेटा है, ये बेटे को जाएगा, लेकिन बेटा इस घर को बेच नहीं सकता जब तक मेरी वाइफ है, उसको पूरा हक होगा इस घर में रहने के लिए, और वो रहेगी, और बेटा नहीं बेच सकता, मेरी वाइफ की डेथ के बाद ही ये बेटे को जाएगी। उसे कंडीशनल विल कहते हैं, कंडीशनल विल कहते हैं। हाँ, कभी लिख देते हैं, हाँ मेरी माँ अपनी माँ से परमिशन लेकर दोनों अगर चाहे तो बेच सकते हैं, नहीं तो नहीं बेच सकते। ये सेफ्टी रखते हैं हम अल्टीमेटली अपने वाइफ की, अपने फैमिली मेंबर की। ये बहुत होता है और ये होना भी चाहिए। मैं ये कहा करता हूं कि विल लिखना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विल में दो चीजें होती हैं कि दो जगह ऐसी है, 3 जगह जहां पर विल का सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है इंडिया में, और वो जगह है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट के बगैर आपकी विल इंप्लीमेंट नहीं होती, लेकिन वहां बहुत आराम है कि बहुत थोड़े से पैसे से आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो 75,000 है और 50,000 है, इतने ही अमाउंट है, मैक्सिमम 20 से लेकर 50, तो आपको वहां पर लेना पड़ता है। उसके बगैर तो वो आपको प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होती, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो लिखा विल का उसको। लेकिन बाकी कंट्री में, मेरे को एक आध कोई हो गया तो बाद में लेटर पता नहीं है, हमारे दिल्ली में सक्सेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है, लेकिन रिटर्न भरने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है, वो अलग बात है, लेकिन लेना जरूरी नहीं है। आप प्रॉपर्टी को म्यूटेट करा सकते हैं, अगर विल है उससे म्यूटेट आप प्रॉपर्टी को करा सकते हैं, और वो लीगली अलाउड है। अगर डिस्प्यूट हो गया तो राजेश जी 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, नई वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है। 4% तो इतना अमाउंट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हो सकता है अरबों रुपए की या करोड़ों रुपए की अब हो गई हो, उसका 4% ला के कहां से देगा, ये भी पॉइंट होता है। और सक्सेशन सर्टिफिकेट में कई फॉर्मेलिटीज हैं, उसे प्रोबेट कहते हैं, उसे प्रोबेट कहते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट को प्रोबेट कहते हैं, PROBAT। हमारे यहाँ प्रोबेट की जरूरी नहीं है, आप प्रॉपर्टी को अपने नाम पर म्यूटेट करा सकते हैं म्युनिसिपैलिटी में देकर, क्या अपना विल की कॉपी दीजिए, हो सकता है। बाकी आपको पता है क्या देना पड़ता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भी फेसलेस काम नहीं है। वो क्या देना पड़ता है वो मैं क्या बताऊं, सबको पता है कैसे काम MCD में या कहीं होते हैं। तो ये क्लियर हो गया सर। विल आप चेंज कर सकते हैं, लास्ट विल मानी जाती है। विल आप, एक और विल होती है प्रिविलेज विल। ये जो वार में जाते हैं वो क्या करते हैं कि वो विल तो लिखी नहीं है, वहां मरते हुए अगर वो कह दे चार तो सामने अपने सोल्जर्स के, ये मेरी प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, तो वहां पर विल लिखी भी ना हो, उसे प्रिविलेज विल कहते हैं। साइन तो मतलब ही नहीं है, वो प्रिविलेज विल अलाउड होती है। अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि उसने मेरे सामने कहा था ये प्रॉपर्टी इसको दी जाए। क्लियर हो गया सर। विल भी कर सकते हैं, इंटेस्टेट डेथ भी हो सकता है। आगे कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सर क्वेश्चन तो 16 आए हुए हैं, पर लेकिन डिफरेंट है, ये बाद में पूछ लेंगे लास्ट में, या जैसे आप कहो तो अभी पूछना शुरू करूं। मुझे कल लास्ट में पूछ लेना, मैं आगे बढ़ा। जी सर, जी सर। ऐसा है, हमारे यहाँ एक गलत फहमी है, ये सोचकर कि बाप के मरने के बाद HUF बेटे की बन गई। ऐसा कोई तरीका नहीं। 1956 से पहले कोई डेथ होती थी तो वो ऑटोमेटिकली HUF फैमिली की बन जाती थी हिंदू। लेकिन 1956 के बाद, अभी अभी मैंने बताया, मेरे डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिलेगी, और कोई कैपेसिटी है ही नहीं सिवाय इंडिविजुअल कैपेसिटी।
एक जरा टेलीफोन जरा इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट के लिए ले। ओके सर, सर प्लीज 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 सर। मैडम पांडे जी, आप जब तक अपना ये माइक सही कर लो ना। अरे मैंने किया तो है, अब आ रही है आवाज? नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। आ रही है? हाँ, यस यस। चलो ठीक है। गुरुजी याद कर रहे हैं तो उनसे पूछो तो सही क्वेश्चन, आपको स्पेशली पूछ रहे हैं वो। ये चार्ज कर आपको गुरुजी ने पता है? मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया अच्छा, आगे गुड वाले गुड। उसमें, इसलिए मैंने पूछा नहीं कि जैसे जैसे गुप्ता आगे जी। बोला उन्होंने तो वो हो गई ना हाँ, क्लियर बात। राजेश जी मैं ये कह रहा था कि अगर हमें इस पे कुछ चार्ट्स वगैरह मिल जाए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ इस तरह से चार्ट्स वगैरह बन जाए ना तो सर वो आपको पता है गुरुजी कभी पेन पेंसिल पीपीटी तो यूज करते नहीं, कोई पेपर यूज करते नहीं है। वो नहीं तो नहीं चार्ट आपको ही बनाने पड़ेंगे। वो तो राजेश जी, आपको गुरुजी ने बनाए हुए हैं। एक बार पहले भी करोलबाग स्टडी सर्कल में जब फिजिकल सेमिनार हुआ था तब बताया था गुरुजी ने यही, तो उन्होंने पूरी पीपीटी दी थी चार्ट्स वाली। बस भाई वो आप मुझे दे देना मैडम, अगर आपके पास है तो। ढूंढनी पड़ेगी मुझे, देखूंगी सर एक बार। आप हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लास 1 क्लास 2 ईयर्स करो, पूरे चार्ट उसमें आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू जस्ट डू हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लास 1 ईयर्स क्लास 2 ईयर्स, यू विल गेट द एंटायर लिस्ट विद द एंटायर थिंग, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी ऑन दैट। ओके। और गुप्ता जी आप कह रहे थे कि स्पिरिचुअल पे एक वो करवाएं वेबिनार, तो आपसे बढ़िया स्पीकर कौन मिलेगा, आप करिएगा। इलेक्शन के बाद करते हैं सर, डेफिनेटली डन सर, इलेक्शन के बाद करेंगे। हाँ जी। हाँ, और अब इलेक्शन तो की बात आईबीसी करें। पे भी मैं काफी बोलता हूँ, तो आईबीसी पे भी बोल सकता है। ठीक है। ये जो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन है आईबीसी, मुझे लगता है गुरुजी फ्री हो गए दिखे। यस प्लीज सर आप सर अनम्यूट कर लो, सर अनम्यूट करो सर। अभी नहीं हुआ सर। हाँ, नाउ इट्स ओके सर। मेरा पॉइंट ये है कि अब एचयूएफ बनती कैसे है? कहते कोई बनाना, एचयूएफ बनाई नहीं जाती। वो तो लीगल है कि जिस दिन मेरी शादी हुई हिंदू लॉ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन गई जिस दिन मेरी शादी हुई। लेकिन इनकम टैक्स कहता हो रही होगी तेरी शादी, मुझे क्या लेना देना? तेरे पास इनकम कोई आई तो होगा ना। अभी तो इनकम तो आई नहीं, तो मैं क्या करूं? शादी से क्या होता है? रुकी एक और बात। इनकम टैक्स कहता है, हिंदू लॉ में कहता है जिस दिन शादी हुई। इनकम टैक्स कहता है कि रुकिए, 10 रुपए से कि आपके पास 2 को पार्टनर होने जरूरी है। जब तक 2 को पार्टनर नहीं होंगे तो वो एचयूएफ नहीं मानी जाती, क्योंकि को पार्टनर पार्टीशन करा सकता है, वाइफ को पार्टनर नहीं है, वो पार्टीशन करा नहीं सकती, तो वो कैसे एचयूएफ बन गई? हिंदू लॉ में है। 1 मिनट सुनते रहना। इनकम टैक्स कहता है 2 को पार्टनर चाहिए, और वाइफ और हस्बैंड को पार्टनर नहीं है। हस्बैंड तो है, और एचयूएफ मेल मेंबर ही बनाता है, फीमेल मेंबर नहीं बनाता। एचयूएफ मेल मेंबर से शुरू होती है। सुन लीजिए। तो इसका मतलब एचयूएफ यू बनती है, यू नीड टू हैव ए चाइल्ड। एक चाइल्ड होना जरूरी है, तो एचयूएफ इनकम टैक्स में बनती है। हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। सुन लीजिए, ये बात अलग है अगर मरने के बाद कोई एचयूएफ में 10 मेंबर थे, कोई मर गया और बाकी कोई आहिस्ता सा चप चले गए, तो एक हो पार्टनर और एक और मेंबर हो तो भी एचयूएफ चलती है। मरने के बाद एक को पार्टनर हो सकता है, मरने से नई बनाने के लिए 2 को पार्टनर हमें चाहिए। तो दूसरी बात आई, पैसा कहां से आएगा एचयूएफ के पास? अरे एचयूएफ तो इनकम कमाएगा, तो पैसे लगा के इनकम कमाएगा। अपने आप इनकम एचयूएफ कैसे कमा लेगा? इंडिविजुअल थोड़ी है जो नौकरी करके इनकम कमा लेगा या वो कर लेगा। ये तो एचयूएफ के लिए तो इनकम का सोर्स कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कोई कॉर्पस होना चाहिए। तो वो कॉर्पस कहां से आएगा? सर 2 ही तरीके हैं सुनील जी, एक तो बाय वे ऑफ गिफ्ट और दूसरा बाय वे ऑफ विल करके आप कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद ये पैसा या ये एसेट एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन को जाएगी। सर विल में रिसाइटल होगा दैट सच एंड सच प्रॉपर्टी विल गो टू एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन। अगर वहां रिसाइटल लिखा है इट विल गो टू माय सन, तो वो एचयूएफ नहीं बनेगा। इट विल गो टू माय सन नहीं बनेगा, इट विल गो टू एचयूएफ ऑफ माय सन, तो जा सकती है। पहला विल से एचयूएफ बनती है। विल करने में बाप की जरूरत,
कोई भी विल कर सकता है, मैं भी किसी के एचयूएफ में विल कर सकता हूँ, क्योंकि विल तो किसी को भी दी जा सकती है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ पावा जी, गिफ्ट ले लीजिए और कॉर्पस बन जाता है। आप चाहें तो, आपको याद है 56(2)(10 है, 52(10) में लिखा है कि 10-50 हजार से ऊपर अगर गिफ्ट लोगे तो उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ। अगर मैं अपने मेंबर से गिफ्ट लेता हूं एचयूएफ के, तो वो 56(2)(10 नहीं लगता, लेकिन वो लेने का फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें 64(2) लग जाता है। उससे जो इनकम आएगी वो क्लब होगी अंडर सेक्शन 64(2). if there is a member who has transferred any asset to HUF without consideration, then the income of that asset shall be taxable in the hands of the transferor. तो इसलिए उसका नुकसान होता है। हालांकि हम उसमें भी बता देते हैं कि आप चाहो तो ले सकते हैं। सपोज बाबा जी 1 करोड़ रुपया आपने अपनी गिफ्ट दे दी अपने एचयूएफ को, आप कहेंगे इसकी इनकम क्लब होनी है। मैं कहूंगा पावा जी इस 1 करोड़ की इनकम को आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में लगा, जिसमें 5% रिटर्न आ रही है। आप 5 लाख रुपए आया, इनकम है एग्जेम्प्ट, तो क्लबिंग में भी एग्जेम्प्ट रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 5 लाख को जो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे वो क्लब नहीं होगी। इट इज इनकम विच इज क्लब्ड, इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड। ये क्लियर हो गया? इनकम तो जरूर क्लब होगी, उस इनकम से जो फर्दर इनकम आएगी वो क्लबिंग नहीं होती है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, आप किसी से भी गिफ्ट ले लीजिए, लिखवा लीजिए गिफ्ट में दैट आई हियर बाय गिफ्ट इज सम ऑफ रुपीज। अमाउंट मैं बता रहा हूं, कम से कम 2,51,000 के ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप कहेंगे क्यों? पहली बार एचयूएफ बना रहे हैं तो रिटर्न चली जाए इनकम टैक्स की तो अच्छा लगता है। 2.5 लाख माफ हो जाएगा उसमें, और 1,000 रुपए पर 50 रुपए टैक्स प्लस 4% सरचार्ज, सॉरी एजुकेशन सेस 52 रुपीज का टैक्स जमा कराइए और आपकी एचयूएफ में पैसा आ गया। कितना आ गया? 2,51,000। 52 रुपए दे दिए, बाकी तो एचयूएफ में आ गए। एम आई राइट सर? आप चाहे तो 4,01,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए को एटीसी का बेनिफिट ले लीजिए, एटीसी का बेनिफिट ले लीजिए। सर इसमें फर्स्ट 50,000 एग्जेम्प्ट नहीं होंगे गिफ्ट के केस में? नो नो नो, 51,000 है तो पूरा टैक्सेबल, 50 है तो कुछ नहीं, 51 है तो पूरा टैक्सेबल। ओके सर, ओके। अप टू 50 फुल, 51 टैक्सेबल, कोई एग्जेम्पशन नहीं। तो 2,51,000 लीजिए, 4,01,000 ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए का एफडीआर बनवा दीजिए 5 साल के लिए, 1.5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। मिल गया सर? 4,01,000 भी हो सकता है सर, 4,51,000 भी हो सकता है। अगर आपको मेडिकल करानी है अपने मेंबर की और 80D में सीनियर सिटीजन की है तो 50,000 रुपए तक मेडिकल प्रीमियम भी माफ है। ठीक है ना सर? ये तरीका तो आप ढूंढ सकते हैं गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। अगर गिफ्ट पैसे जमा करा के कराई गई है तो आपको बता दूं वो तो फिर सेक्शन 115 BBE में 78% टैक्स लग जाएगा, 78% टैक्स लग जाएगा। गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। वैसे गिफ्ट जेन्युइन कहाँ होती है? हमारी जब पता है कंट्री में गिफ्ट दी थोड़ी जाती है, गिफ्ट तो ली जाती है। मैं राजेश जी को रोज कहता हूँ मुझे गिफ्ट दिलवा दो, दिलवा दो। मैं तो गिफ्ट, आजकल तो लोग गिफ्ट बिल्कुल लेना चाहते हैं और पूरा टैक्स भी देना चाहते हैं। राजेश जी आजकल कहते हैं राजेश जी के पास 10 करोड़ है, दिलवा दो, हम टैक्स दे देंगे, हम दे देंगे। अरे ये भी लोग आ गए अब तो। पहले तो डरते थे ना, अब 78% ना लगे, 30% में काम हो जाए, वो ठीक है 10 करोड़ करूंगा तो सरचार्ज लगेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ गिफ्ट हमारी कंट्री में दी नहीं जाती, ली जाती है। लेकिन अगर बच्चों को गिफ्ट दे रहे हो, हम कौन मना करते? या किसी को गिफ्ट दे रहे हो उसकी एचयूएफ को, हम मना नहीं करते। अगर वो जेन्युइन है, रीजनेबल है, टैक्स दे दो ना। 2,51,000 रुपए टैक्स थोड़ी लग रहा है और आपकी एचयूएफ दे। ये क्लियर हो गया? एचयूएफ कैसे, उसका कॉर्पस कैसे आना है। बाकी तो आप लोन लो, जो मर्जी लो, कॉर्पस के लिए कुछ तो बेसिक अमाउंट चाहिए ना सर, वो आपको मिल गया आइदर बाय वे गिफ्ट और बाय वे ऑफ ए बिल, और आपके एचयूएफ दिया।
आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ एचयूएफ के बारे में हमने बहुत कुछ किया, लेकिन एचयूएफ के बारे में ये बता दूं कि अब सीए एचयूएफ का अगर करता है तो पहले कहते थे वो बिजनेस नहीं कर सकती एचयूएफ अगर सीए उस एचयूएफ का करता है, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने एक रिलैक्सेशन दे दी और वो है अगर सीए एचयूएफ का करता है तो एफ&ओ का बिजनेस कर सकता है, बाकी नहीं एफ&ओ का। बाकी तो इन्वेस्टमेंट तो जो मर्जी करे, एफ&ओ का बिजनेस कर सकता है इवन इफ सीए इज करता ऑफ द एचयूएफ। इस सीए को अलाउ कर दिया गया। तो ये मैंने कहा बता दें आपको। आप एचयूएफ बनाते क्यों हैं भैया? बनाने का कारण 1,95,000 रुपए का हर साल फायदा होने वाला है, इसलिए आप एचयूएफ बनाते हैं। क्योंकि जब एचयूएफ बनाते हैं तो एक सेपरेट एसएससी मिल जाता है, और सेपरेट एसएससी मिलता है तो सर पहला 2.5 लाख जब माफ हुआ तो आपने 30% पैसा टैक्स बचा लिया। अगर आपकी ऑलरेडी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप कहते हैं चलो एचयूएफ बना लें, तो पहला 2.5 लाख पे 30% 75,000 टैक्स बच गया। एम आई राइट सर? दूसरे 2.5 लाख पर 5 देना है तो आपको 25% टैक्स बच गया। 25% और 2.5 लाख का 62,500 का टैक्स बचता है। 75,000 प्लस 62,500 1,37,500 का टैक्स बचा अगर आप 5 लाख तक हैं। अगर आप अगले 5 लाख का आपको 10% बचता है। 10 कैसे बचता है आपको पता ही है, 20 लगेगा 10 बचेगा तो 50,000 वहां भी बचता है। तो 1,87,500 हो गया, और उसमें 4% एजुकेशन टैक्स जोड़िए तो 1,95,000 हो गया अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं। अगर नई रिजीम में हैं तो और भी बढ़ सकता है, सबको पता है। सो ओल्ड और नई रिजीम में ये चलता रहता है। एक सेकंड सर, फिर वो इंपॉर्टेंट कॉल। प्लीज सर, कोई दिक्कत। समझ में आया सर? समझ में आया? इतना फायदा एचयूएफ करने का है। 10 लाख से ज्यादा इनकम हो ओल्ड रिजीम में तो वहां भी 30 लगता है और उधर भी 30 लगता है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हर साल आपको एडवांटेज मिलता है एक एसएससी का, इसलिए लोग एचयूएफ बनाना चाहते हैं। मैं आपको बोलूं एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, करता अगर उसमें सीए नहीं है तो कर सकता है। और एक चीज और बता दूं, एचयूएफ में डॉटर का वही हक है जो बेटे का हक है। अगर पार्टीशन हुआ तो डॉटर को भी उतना ही मिलेगा जितना बेटे को मिलता है 9/9/2005 के बाद। पहले डॉटर का कोई हक नहीं था एचयूएफ की प्रॉपर्टी में, लेकिन अब एचयूएफ का जब भी पार्टीशन होगा जितना बेटे को मिलेगा उतना बेटी को मिलेगा। ये लॉ बन चुका है। और एक और बता दूं, कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता। कर्ता की डेथ हो गई, पहला कर्ता कौन है? जिसने एचयूएफ बनाई वो कर्ता बना। दूसरा कर्ता कौन होगा? कौन होगा पावा जी? अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो कौन बनेगा कर्ता? उसका मेल मेंबर, अदर मेल मेंबर। सन बिल्कुल मत कहना, एल्डेस्ट चाइल्ड। ओके। वो जमाना चला गया एल्डेस्ट सन। हम लोग अभी भी मेल शॉविनिस्टिक में एल्डेस्ट चाइल्ड, डॉटर। बेटा बड़ा है तो बेटा, ये बाई कन्वेंशन है एल्डेस्ट चाइल्ड। बेटी भी बन सकती है, चाहे बेटी शादीशुदा है तो भी बाप की एचयूएफ में वो कर्ता बन सकती है, बनेगी। हाँ, सारे मेंबर डिसाइड कर लें तो कोई भी कर्ता हो सकता है अडल्ट मेंबर। वो तो एक रेजोल्यूशन पास कर लो, सारे साइन कर दें कि ये वाला कर्ता माना जाएगा। अगर वो अडल्ट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदरवाइज बाई कन्वेंशन बाप के मरने के बाद, कर्ता के मरने के बाद एल्डेस्ट चाइल्ड जो होता है वो कर्ता होता है। एल्डेस्ट चाइल्ड बोला 9/9/2005 के बाद, पहले भी एल्डेस्ट सन बोला करता था। अब एल्डेस्ट चाइल्ड होगा सन या डॉटर जो उसमें एल्डेस्ट है। क्लियर है सर? ठीक सर। तो डॉटर कैन बी ए कर्ता, और डॉटर चाहे शादीशुदा हो 9/9/2005 से पहले या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी पार्टीशन होगा डॉटर को उतना ही शेयर मिलेगा जितना उसके भाई को मिला है। तो मेरे से राजेश जी कई कहते हैं ये कौन सा लॉ बना दिया कि कहता है कि मेरी बहन जब भी पार्टीशन हुआ, और मेरे फादर की डेथ हो गई, अगर मैं पार्टीशन किया तो मेरी बहन शेयर लेके जाएगी। मैं कहा लेके जाएगी, तकलीफ क्या है तेरे को? तेरी बीवी लेके भी तो आएगी।
उसका भी तो हक है। कहता है सर रुक जाओ, बीबी एक है, बहन 2 है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। जितनी बहनें हैं उतना शेयर उनका है। 2 है, 2 3 है तो 3, 4 है तो 4। इसलिए मैं पहले बोल दूं, बेटी और बेटे में अब कोई फर्क नहीं, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। पहले वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का होता था, एचयूएफ में भी सेम ही लॉ लगता है जो इंडिविजुअल के केस में लगता था। इसलिए हाँ जी सर, एचयूएफ में यदि बहन की डेथ हो गई है, मान लो, बहन के तो बच्चों को उसके बच्चे है वो। हाँ उनके बच्चों को मिलेगा। अच्छा, मतलब उसके बच्चे को पार्टनर तो नहीं होंगे, मगर को पार्टनर हो ना हो वो भी डिबेट में चल रहा है, लेकिन शेयर तो मिलेगा। अच्छा, शेयर उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके। अभी तो को पार्टनर भी कह रहे हैं कि उसके बच्चे भी को पार्टनर बनेंगे, ये तो अभी कोर्ट ने डिसाइड करना है। लेकिन लॉ में ये लिखा है, डॉटर ऑफ ए को पार्टनर हैज ए सेम राइट एज दैट ऑफ सन। फिर सेम राइट है तो फिर क्या मतलब हुआ, ऑफ को पार्टनर। तो डॉटर तो को पार्टनर थी, तो उसके बच्चे भी तो वही आएंगे। लेकिन हस्बैंड को तो नहीं मिलेगा ना, उसके हस्बैंड को तो दूर दूर तक नहीं मिलता। बेटी के हस्बैंड को कुछ नहीं मिलता, बेटे की वाइफ को मिलता है। शेयर नहीं मिलता, बेटे को मिलता है, वाइफ को नहीं मिलता है। बेटे का बेटे को मिलता है, बेटे का बेटियों को मिलता है, वाइफ को नहीं मिलता। लेकिन अगर बेटा की डेथ हो गई तो वाइफ को अपने आप मिल जाएगा ना, लीगल एयर, अदरवाइज नहीं। मैं ये कह रहा हूं सर, 6:30 बज गए। मैंने सोचा था आज जल्दी खत्म कर दूंगा, मुझे एक कॉल आई है बहुत जरूरी, तो मैंने कहा आप क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि उसमें भी 15-20 मिनट तो आप लगा ही देंगे कम से कम। एम आई राइट राजेश जी? राजेश जी साइलेंट मोड में चले गए शायद, तो अभी उनका नेटवर्क का कोई इशू आ गया। सर क्वेश्चन ले लेते, नॉट इशू एट ऑल। प्रोसीड सर, आगे बढ़े। अभी सर ज्वाइन कर लेते दोबारा। और राजेश जी ज्वाइन कर लिया तो मैं कह रहा था, मुझे वैसे तो जाना था, मेरी बहने मेरे को पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट आप लगा ही देंगे, जितने क्वेश्चन पूछने पूछे। ठीक है सर। सर, कैन एनी को पार्टनर रिलिंक्विश हिज राइट बाय राइटिंग ए रिलिंक्विश डीड? यस, ही कैन रिलिंक्विश, लेकिन उसको बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ही कैन रिलिंक्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन, it means wife cannot be karta automatically after the death of husband? No question, lady, daughter can be karta, wife cannot be a karta. कई बार से पूछते हैं कि बेटी हस्बैंड की डेथ हो गई और दो बच्चे माइनर हैं और बीवी है, तो अब क्या होगा? चल एचयूएफ चलता रहेगा, लेकिन वाइफ को मैनेजर मानी जाएगी टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द एचयूएफ, लेकिन वो कर्ता नहीं होगी। और जिस दिन बच्चे बड़े हो जाएगा, जो भी 18 साल से ज्यादा, वो कर्ता बनेगा। वाइफ कर्ता नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ता वही बनता है जो को पार्टनर है, और वाइफ को पार्टनर नहीं होती, डॉटर को पार्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, ए मेंबर कैन गिव ए लोन टू एचयूएफ एट 0% इंटरेस्ट? दे सकता है, बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो कहते हैं प्लानिंग है। आप एसएससी क्रिएट कर रहे हैं, इनकम क्रिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरा? सपोज एचयूएफ के पास पैसे नहीं है और एचयूएफ को लोन देकर उसने इनकम कमाई, तो उसने टैक्स का रिबेट ली ना, स्लैब की रिबेट में, वो कहते हैं ये टैक्स प्लानिंग है। अगर वो ऑलरेडी 30% में एचयूएफ है, फिर उनको कोई तकलीफ नहीं। अब बात को समझ रहे हैं मेरा क्या पॉइंट है राजेश जी? ये प्लानिंग कर रही है, यू आर शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स। वो आप एचयूएफ को देकर स्लैब रेट का बेनिफिट लेंगे तो नहीं मांगते। वो कहते हैं टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे, अवॉइडेंस कर रहे हैं। ये प्लानिंग नहीं है, अवॉइडेंस। इसे प्लानिंग नहीं बोलेंगे, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स व्हिच इज नॉट अलाउड। कर्ता पेमेंट देके अगर प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम खरीद लेगा तो क्या होगा? कर्ता देकर, कर्ता अपने पैसे देगा तो अपने नाम पे ही होगा। कर्ता एचयूएफ के पैसे लेकर कर्ता के नाम पे ही प्रॉपर्टी होती है, उसमें लिखा जाता है कर्ता और सच एंड सच एचयूएफ। एचयूएफ के नाम नहीं होती, एचयूएफ सो एंड सो ना लीगल पर्सन के नाम होती है। एचयूएफ के नाम कभी प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें नाम लिखना पड़ता है किसी भी मेंबर का। ठीक है सर। इवन पार्टनरशिप के नाम पे भी नहीं करते, वो लिखना पड़ता है पार्टनर का। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी के नाम करते हैं, इंडिविजुअल के नाम करते हैं। कई सेल डीड तो देखिए एचयूएफ के नाम में भी और फर्म के नाम में। नहीं सर, कर्ता का नाम आएगा बीच में। नहीं सर, वो बाद में आता है, एचयूएफ का पहले आया और थ्रू करता ऐसे करके, जैसे कंपनी का होता है। कर्ता ही तो ही कर्ता के थ्रू ही आएगी, और वो कर्ता का ही नाम होती है। वो जो पैसे, जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है ना, जो रजिस्ट्री होती है, वहाँ कर्ता का नाम दिया जाता है। नहीं सर, वो दिया तो जाता है, एक आता है जैसे
ऐसे लिखते हैं कर्ता, वही कर्ता साइन करेगा, फिर वो कर्ता नहीं होगा तो फिर दूसरा कर्ता आएगा। एक्चुअल थोड़ी साइन करेगा कर्ता, कौन साइन करेगा? कर्ता ही करेगा साइन जब सेल होगी तो। सर मेरा कर्ता है टू साइन इट ना। बाबा साहब आप क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेना, आपके पास तो नंबर है, उनका हॉटलाइन नंबर है गुरुजी का। मैं जरा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लूं, गुरुजी को 15 मिनट में जाना भी है? आप बाद में पूछ लेना हॉटलाइन पे। सर रेवांत वेल साहब पूछ रहे हैं, व्हाट बिजनेस कैन सीए इन प्रैक्टिस इन एचयूएफ कैन डू? मैंने कोई बिजनेस सीए करता है तो नहीं कर सकता, बाकी अगर किसी बेटा या बेटी को करता बना दे तो कर ले। सीए खुद नहीं कर सकता, एक ही बिजनेस कर सकता है एफ&ओ का, बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शैलेंद्र गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इन ए पार्टनरशिप फर्म विद 2 पार्टनर्स, one partner died and the legal heir of the other partner joins the firm as partnership deed. No capital assets or stock or cash is paid to any partner, whether section 98 or 45(4). इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर 2 ही पार्टनर हैं, चाहे आप लिख दो डीड में कि लीगल एयर को लेंगे, लॉ डिसाइड कर चुका, ये डिसोल्यूशन है। हाँ, 3 पार्टनर होते और एक का डेथ हो जाते और आप कहते उसके लीगल एयर को ले लेंगे, हम कुछ नहीं करते, डिसोल्यूशन का केस है। सुखदेव जी के 2 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, उनको मैं छोड़ रहा हूं सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो डायरेक्ट गुरुजी से पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरेन्द्र जी का, पड़ेगा उनको हैं वोट देना पड़ेगा उनको। आगे बोलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरेन्द्र जी पूछ रहे हैं, कैन 2 इंडिविजुअल हस्बैंड एंड वाइफ क्रिएट 1 ट्रस्ट? कैन 2 इंडिविजुअल हस्बैंड एंड वाइफ क्रिएट 1 ट्रस्ट? बेनिफिशियरी कौन होगा? दोनों हो सकते हैं, क्यों नहीं? इसमें वो रिलेटिव है जी सर। बेनिफिशियरी का नाम है, सेटलर खुद बेनिफिशियरी भी नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है। सेटलर ट्रस्टी तो बनते हैं, वैसे खुद बेनिफिशियरी नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सुधीर सलूजा जी पूछ रहे हैं, हाउ विल बेनिफिशियरी शो हिज इनकम अदर देन ट्रस्ट इनकम इन द टैक्स रिटर्न इफ ट्रस्टी फाइल्स हिज इनकम? सर वो ये कह रहे हैं कि उनकी और भी इनकम है और ये भी इनकम है, तो वो उसकी अपनी रिटर्न में कैसे करेगा? सिस्टम इज हम अपनी इनकम बता देते हैं और ट्रस्टी उसको भी जोड़ लेते हैं। नहीं तो 168 सेक्शन कहता है एओ चाहेगा तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के हाथ में टैक्स लगा सकता है इंस्टेड ऑफ द ट्रस्टी। ये भी रूल है 168 सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन महेश जी पूछ रहे हैं, ओल्ड प्राइवेट ट्रस्ट, नो शेयर डिफाइंड, नो ट्रस्टी अलाइव एज ऑन डेट, वेदर बेनिफिशियरी हिमसेल्फ विल बी द साइनिंग अथॉरिटी फॉर आईटीआर, What will be taxation provision on closure of this trust? ट्रस्ट डीड देखनी पड़ेगी, ट्रस्ट डीड देखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं तो कोर्ट अपॉइंट करेगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ये ट्रस्ट डीड देखनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनोनिमस अटेंडी, सर व्हाट इफ वन चाइल्ड इज मेंटली अनस्टेबल? तो क्या हुआ? किस लिए पूछ रहे हैं? बस इतना ही लिखा है सर। मेंटली अनस्टेबल तो गार्डियन होगा ना, गार्डियन के थ्रू करते हैं सब काम। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलेश जी पूछ रहे हैं, इफ एनीवन हैज इन्वेस्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बट मैप इज नॉट अप्रूव्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बट ऑल पेमेंट मेड बाय चेक, वेदर ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54? नहीं देंगे, ओनरशिप ही नहीं आती उसमें, रजिस्ट्री नहीं है तो कई बार वो कहते हैं ये ओनरशिप नहीं है, यही प्रॉब्लम आती है। नहीं सर इनका क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्री तो है लेकिन मैप अप्रूव्ड नहीं है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। रजिस्ट्री देखिए रजिस्ट्री करा ली, कल वो आपको दे देंगे, कल घर टूट जाए तो टूट जाएगा। ऐसा कोई मैप अप्रूव वाला का लॉ में नहीं लिखा कुछ भी, मिल जाएगा। मतलब रजिस्ट्री है तो वो कहेंगे हाँ तुम्हारा घर मिल गया, अनऑथराइज्ड है, ये है, टूट जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आपने तो खर्च किया है ना, तो दे देते हैं। ठीक सर उनका पॉइंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट से होगा, उनको मिल नहीं पाएगा, उसके बाद होगी इनका। मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट से कुछ होता ही नहीं है, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन is complete. Next question Rakesh Arora ji, married daughter having no children died, whether her share will go to her husband out of her father property after father's death? No, married daughter के अगर चिल्ड्रन नहीं है तो जो फादर से मिला वो फादर को वापस जाएगा, फादर को वापस नहीं गया तो उसके बच्चों को जाएगा, बच्चों को उनके बच्चों को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं, in case daughter of male has already died and not having any children, whether the property will go to the husband? No. फादर को जाएगी। नहीं। मनीष जी पूछ रहे हैं, if will rights then it override the nominee mentioned in bank FD? देखिए नॉमिनी कुछ नहीं होते,
नॉमिनी मालिक नहीं होते, ये बड़ा मिथ है। नॉमिनी ओनली ट्रस्टी होते हैं उस पैसे के लिए, मिलेगा उसको जो विल के हिसाब से है या हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। लेकिन हमारे यहाँ देखा गया नॉमिनी अपनी जेब में पैसा रख लेते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, नो, इट डजंट गो टू हिम। वो तो एक ट्रस्टी है, ट्रस्ट में पैसा लिया है, वो उनका मिलेगा जिनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील जी पूछ रहे हैं सर, इफ विल इज रजिस्टर्ड एंड हैविंग एग्जीक्यूटर, how the property shall be transferred in the name of person who got it, whether simply filing copy of will with sub registrar is sufficient or registrar shall insist for NOC of all legal heirs। मैंने आपको बताया ना, जब डिस्प्यूट होता है तो एनओसी की बातें करते हैं, नहीं तो म्यूटेशन करा लो। महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, बंगाल छोड़ दीजिए, तमिलनाडु, वहां तो छोटे थोड़ा सा अमाउंट मिलता है और प्रोबेट मिल जाती है। हमारे यहाँ प्रोबेट के बहुत पैसे लगते हैं, इसलिए हमने दूसरा तरीका कहीं नहीं लिखा हुआ। आप जो सीधा जाके भी सक्सेशन सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग देके, सबके एफिडेविट देके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मयंक जी पूछ रहे हैं, वो प्रोबेट नहीं है, सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं जी। मयंक जी पूछ रहे हैं, डज फैमिली एमओयू साइंड बाय ऑल फैमिली मेंबर्स सस्पेंसेड supersede the will? Family MOU is unstamped but relate to all movable properties of the family and signed by parents। फैमिली क्या बीच में आ गई? विल तो एक इंडिविजुअल की होती है। समझा नहीं क्वेश्चन? सर ये कह रहे हैं कि डज फैमिली MOU साइंड बाय ऑल फैमिली मेंबर सुपरसीड द विल? सर ये बात बेकार की बात है, वो तो फैमिली सेटलमेंट की बात करते हैं। फैमिली सेटलमेंट एक अलग चीज है, और वो विल लिखी गई, वो प्रॉपर्टी उसको आ गई, वो आपस में डिसाइड कर ले तो हो जाएगी। फैमिली सेटलमेंट में तो अलाउड है। वो तो फैमिली सेटलमेंट तो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे भाई के नाम पे, तो भी मैं ले सकता हूँ। वो चीजें अलग है। वो फैमिली सेटलमेंट बाद में आता है, विल चीज अलग है। तो विल तो पास ऑन हुई, उसके बाद आपने फैमिली सेटलमेंट कर लिया, कर लीजिए। फैमिली सेटलमेंट में कोई अलाउड है, सब कुछ, कोई टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनील जी, वेदर HUF कैन इन्वेस्ट अंडर 80C in LIC or in PPF in the name of grandson, son of son? PPF तो अलाउड ही नहीं है HUF को। HUF PPF नहीं ले सकता। LIC अपने मेंबर के लिए LIC ले सकता है, HUF मेंबर के लिए पॉलिसी ले सकता है, और ग्रैंडसन भी तो मेंबर है, पॉलिसी ले सकता है HUF, या फिर HUF FDR ले सकता है 5 साल वाली। लेकिन PF तो बंद हो गया। HUF कोई मतलब नहीं, HUF का PPF होता ही नहीं। जिनका पुराना चल रहा है 15 साल बाद खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन BS माथुर जी का इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, वो दोबारा पूरा क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस प्रॉपर्टी परचेज 2 years ago was completely demolished by after 1 year and was rebuilt, which is completed 2 months ago and is transferred today, whether such capital gain is long term or short term? सर बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म हुआ, लैंड का लॉन्ग टर्म। ओके, खत्म हो गई जब आपने तोड़ दी, तो नई बिल्डिंग बनी है, नया नक्शा कराया, तो वो उसका क्या मतलब है? बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म, उसका लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ने के लिए, हम तोड़ने के लिए थोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ someone not related to HUF gave amount through his will when he died and amount received by HUF not related to that person is received, whether this amount is taxable in the hand of HUF? Not taxable at all. Anything which you receive by way of will is not taxable. Okay. Not Next taxable, question. sir. Not taxable. Next question, can HUF earn commission? कौन सी 31 मार्च वाली? जी No. जी नहीं। Next question. हाँ, आप एजेंसी ले रखी है किसी की, सपोज करो आपने इनकी एजेंसी ले ली स्वामी जी की, ये पतंजलि की, और वहां पर वो कह रहे हैं जी आपको 5% कमीशन देंगे सेल पे। वो कमीशन थोड़ी है, वो तो बिजनेस इनकम है। वो वाली कमीशन अलग है। पक्का आड़तिया कमीशन अलाउड, कच्चा आड़तिया कमीशन नॉट अलाउड। Next question, whether it is not compulsory that there should be minimum 2 trustee for formation of discretionary trust? Can be only 1 trustee also. 2 is better, but there can be 1 trustee also. Next question, Surender Sharma ji, can any co-partner relinquish his or share by writing relinquish deed? दे चुका हूं मैं, जवाब दे चुका हूं सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case daughter-in-law takes divorce
can she claim right in HUF property? पहले तो उसका राइट वैसे भी नहीं है HUF की प्रॉपर्टी में, उसका राइट कहां से आ गया? उसका होता ही नहीं है राइट, राइट तो बेटे का या बेटी के बच्चों का है। और दूसरी बात, डिवोर्स के बाद एलिमनी ले ली जाती है, उसके बाद लिखा दिया है, उसका कोई राइट नहीं रहेगा। डिवोर्स का मतलब ही यही है, लिख लिया जाता है, उसका कोई भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं होगा, तो फिर खत्म हो गया। She is no more a wife, but she doesn't have a right in the property earlier. Next question, whether relinquishing one share in favor of HUF doesn't amount to partial partition, which is not allowed? Not allowed, partial partition not allowed. नहीं, उनका क्वेश्चन है सर, whether relinquishing one share in favor of HUF. ये वो HUF की प्रॉपर्टी HUF में ही रहा ना, गया कहाँ? कोई नहीं है, ये पार्शियल पार्टीशन नहीं है। अरे रेलिक्विशन को ले थोड़ी गया है, वो तो HUF की प्रॉपर्टी में ही रखा हुआ ना, तो फिर पार्टीशन कहाँ हुआ? नो क्वेश्चन, रेलिक्विश HUF के अंदर ही करना है, उसी के अंदर ले। किसी को रेलिक्विश करके बाहर नहीं दे देना, उस रेलिक्विश कर दिए कि ये वाला मैं इसको HUF को ही रेलिक्विश कर रहा हूँ, और किसी को रेलिक्विश नहीं कर सकते। HUF में अपना राइट रेलिक्विश कर सकते हैं, ये गलत ठीक है सर, समझ रहे, मैं किसी और को रेलिक्विश कर रहा हूँ, नहीं, HUF के अपना HUF को रेलिक्विश कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर HUF has 3 property in hand, receive rent of 40 lakhs per annum, can it file return under 44AD as business income? बिजनेस थोड़ी है यार, क्या कर रहा है? बिजनेस की रिटर्न होती है 44AD में, रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, तो वो रिटर्न में कैसे आ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी ले लेंगे, बिजनेस इनकम को लेते हैं 44AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8% दिखाएंगे उसका, क्या बातें कर रहे हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन भुट्टा जी हैं मुंबई से, इफ ए पर्सन हैज 2 wives then how wealth will be distributed under HSA Act? और दोनों लड़की रहे आपस में बांट लें, हमें नहीं मालूम, शेयर एक ही मिलेगा। Next question, Kanav Garg ji, sir, please consider my question on capital gain. A house property purchased 2 years ago was completely demolished. तो हो गया क्वेश्चन, बता दिया। संजय शर्मा जी पूछ रहे हैं, for movable succession certificate but for immovable property letter of admission to be procured from court in jurisdiction. कौन सा कोर्ट से? संजय जी लेंगे, ये प्रोबेट की बात कर रहे हैं, प्रोबेट तो जरूरी नहीं है दिल्ली में। ये कह रहे हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन अलग अलग किया है, मूवेबल के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लेटर ऑफ एडमिशन टू बी प्रोक्यूर्ड, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी प्रोक्यूर्ड। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोबेट नहीं होगा, अगर प्रोबेट है तो 4% लगेगा। संजय जी से बात कराओ ना मेरी। संजय जी होंगे तो अभी बात कर लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहा हूँ सर। क्या कह रहे हैं सर? सुनील जी पूछ रहे हैं कि HUF कैन इन्वेस्ट इन PPF अकाउंट हेल्ड इन द नेम ऑफ ग्रांडसन ऑफ। नो, मैं कर रहा हूं, ये जवाब दे दिया, HUF का PPF होता ही नहीं है। नहीं, अपने मेंबर के HUF में कैन इन्वेस्ट नहीं होगा, अलाउड ही नहीं है, HUF नहीं दे सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 अवेलेबल फॉर लैंड पोर्शन कंसीडर्ड लॉन्ग टर्म वेयर लैंड इज लॉन्ग टर्म एंड बिल्डिंग इज शॉर्ट टर्म। सर आपको लैंड शॉर्ट टर्म और बिल्डिंग शॉर्ट टर्म हो तो आपको पता है कैपिटल गेन कैसे निकालना है 54 में? इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म थोड़ी है, वो तो लैंड सेपरेट है, बिल्डिंग सेपरेट है, तो हो ही नहीं सकता। आप बात को समझ, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म हो, लैंड से नहीं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म हो, तो वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं। आप वो कैलकुलेशन करने के लिए कॉस्ट को इंडेक्स करते, बात अलग है, लेकिन 54 नहीं मिलेगा। 54 मिलेगा जब हाउस प्रॉपर्टी कम से कम 2 साल एग्जिस्टेंस में हो। वहां पर लैंड के लिए अलग नहीं दे रखा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए 54। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन प्रैक्टिसिंग CA डू इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे नहीं, F&O अलाउ किया गया, इंट्राडे स्पेकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether advance received and forfeited from non-resident by non-resident deemed to accrue arise in India? मैं समझा ही नहीं क्या चीज है। ये कह रहे हैं whether advance received and forfeited from non-resident by non-resident deemed to accrue arise in India? मुझे समझ नहीं आया, एडवांस बाहर रिसीव हुआ, बाहर ही हो गया, तो इंडिया से क्या लेना देना? इसकी कोई फैक्ट होंगे, पूछा गलत तरीके से। अगर बाहर एक आदमी ने एडवांस लिया और बाहर ही वो फॉरफिट कर लिया, तो हमें क्या लेना देना?
ठीक है सर। इंडिया में कैसे आ गया? क्या वो इंडिया है? वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? हाँ एनआरआई लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडियन बोल रहे हैं ये। नहीं एनआई, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? आप एनआरआई कह रहे तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट थोड़ी है फिर क्या मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन, I have purchased a plot in Haryana 2 years back and sold part position. How we can book profit proportionately? उसमें क्या दिक्कत है? Proportionately. Next, last question, whether 54F as against 54 as you just said will be allowed in case land sold is long term and superstructure in short term? Sir, वहां पर लिखा you can sell any asset other than residential house property. अगर वो कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी है बेच दीजिए, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं वो पोर्शन लॉन्ग, अगर वो स्ट्रक्चर है तो फिर लैंड वाले का ले सकते हो, बाकी का नहीं ले सकते। जो लैंड वाले तो सर पावा जी अपना क्वेश्चन जरा क्विकली पूछ लो, फिर मैं कोहली साहब को वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। पावा साहब। सर ये जो प्रॉपर्टी वाला है, अगर किसी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और प्लॉट पुराना है, उसके ऊपर उसने पुराना मकान तोड़ दिया और नया मकान बनाया और फिर उसको बेच दिया, 2 साल बाद बेचे, नया बना के 2 साल बाद नया बना के उसका प्लॉट 3 साल पुराना था, तो ये प्रॉपर्टी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होके इंडेक्सिंग को, इंडेक्सिंग लैंड की तो 3 साल की मिलेगी, प्रॉपर्टी की नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी की नहीं मिलेगी, पर कंसीडर लेकिन तो वो फिर 54 वगैरह नहीं ले सकता। 54 भी तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अरे वो लॉन्ग टर्म फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल से कहाँ हुआ? वो तो लैंड से हुआ है। लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल मींस बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, वो बिल्डिंग ही लॉन्ग टर्म होनी चाहिए सर। एक अच्छा, तो इस केस में लॉन्ग टर्म में डिक्लेयर करके मैं मतलब लैंड को इंडेक्सिंग पुरानी डेट से मिल जाएगी और स्ट्रक्चर को उसी साल का अगर कंप्लीशन है तो ये 2 साल 54 नहीं मिलेगा, कैपिटल गेन निकल जाएगा 2, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। अच्छा, टोटल लॉन्ग टर्म में नहीं अगर ये 2 साल पुरानी बिल्डिंग होती तो दोनों मिल जाते हैं, फिर तो मिल ही जाता। लेकिन इंडेक्स करें उसको 3 साल का करेंगे, 2 साल का करेंगे। बट अच्छा, उससे प्रॉपर्टी बिल्डिंग 2 साल कम से कम पुरानी होनी चाहिए, तभी तो 54 में आएगा। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22, तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 22 में तो तभी आएगी जब वो बिल्डिंग कंप्लीट है। तो अगर कैसे आएगी 22 में? सर अगर पुराना जैसे वो था उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दिया तो आपने तोड़ा ना, मेरा मकान खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस में नहीं है, फिर तो नया बनाया ना, उसको रेनोवेट कर लो तो कोई बात नहीं। रेनोवेशन इज डिफरेंट, तो डिमोलिश करके बनाना इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट देयर। तो दैट रेनोवेट कर लो जो मर्जी, रेनोवेट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। हाँ जी, वो ठीक है, वो आई एम नॉट डिनाइंग। तो अगर ये नक्शों में उन्होंने करवाया कि हाँ जी नक्शा नया बनवाया तो वैसे ही किया। अच्छा, नक्शा नया बनवाया तो वैसे ही किया सर, फिर तो नई बिल्डिंग बनाई ना उन्होंने। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई रिक्वेस्ट क्विकली to Rajiv Kohli ji for a formal vote of thanks. Over to Rajiv Kohli ji. Sir ji, thank you very much for such an enlightening talk. आज की डेट में everyone gone, आज की डेट में मुकेश अंबानी जी अपनी सक्सेशन प्लानिंग और विल बना रहे हैं, बिकॉज धीरू भाई ने नहीं बनाई थी। इज द मोस्ट, वो तो जानता हूँ, लेकिन वो बीमार भी है इसलिए। हाँ सर, दोनों चीजें हैं ना, तभी तो कर रहे हैं। फिर फिट एंड फिडल तो नहीं बनाता, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल एज सजेशन पे विल जरूर बनानी चाहिए, इट्स द बेस्ट थिंग। अदरवाइज जो हमारी सक्सेशन हो जाएगी एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो काफी उल्टी पुल्टी चीजें हो जाती हैं। इट्स अ वेरी क्लैरिटी। एंड द नेक्स्ट ब्यूटीफुल थिंग इज, अगर आप आज की डेट में, पहले तो सर वी यूज्ड टू डू द स्टेट ड्यूटी प्लानिंग करनी थी, वो खत्म होगी, दोबारा भी आनी शुरू हो जाएगी, इनहेरिटेंस टैक्स आएगा। एंड द प्राइवेट ट्रस्ट इज द वे आउट एज सजेस्टेड बाय यू, इज अ वेरी थिंग। एंड बेसिकली वेरी इलैबोरेटली आपने सारा छोटे से उतना पूरा हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लास 1, क्लास 2, interstate, otherwise सारी बता दिया। Thanks a ton for such a elaborate, detailed discussion of all the questions you have answered to all the ranges from capital gains to everything, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.
Thanks to all. Thanks to all. Good night. Okay. Good night, sir.